on. It is not that work has not happened. While nobody can say that they disagree, including me, that the delay is not there. Delays have been there. We acknowledge that. We have been updating our websites on a regular basis on the progress. That is one. Apart from that, basis the allotment letters signed by you, the payment plans mentioned therein, we issue demands as and when a particular milestone, construction milestone is achieved. And now the latest is that 2 towers have come up for that stage where offer of position has gone, so that things can be worked out, and accordingly other towers have also been planned so that things will get settled in due course of time. 2015, I would say, is a big action period for us as far as Cape Town is concerned, and we'll be able to achieve major things in this year itself for Cape Town as a project. Can you just update out of the total towers how much you are going to give within this 6 months of 2015? So it is all there, already updated, wherein we have around. Actually, there is no mention on the website because the way it has been updated on the website. There is no, justification at all. You can't update like that. Every 1 month you can't increase 6 months. That's not logical at all. How can you increase 6 month delay within a 1 month? If you see the construction update, how can you increase twice within a month? It was earlier 15, then you made it within 15 days, mid 15, then another 15 days, like in another month you made it early 16. What is the logic there? CG4 has been moved to a lot of towers and why? So we can't trust on the website. As you say, you have a website where you update everything. So the way it is being updated, we can't trust at all. There is no logic for that. Given that, beside this, if we have spent time and came here, why I should not know? Why I should not know? That's no point. What is that so special that you will not let me know? You go and check your website. In the case of payment, you don't do that. Yes. Payment you ask and take the interest immediately, 24%. It is your website. You can change whenever you want. No bank takes that 24%. You take 24%. And when you change the schedule, then you say you will have to make the payment. We don't have any justification for that. That is the kind of response I used to receive from your finance people. And now this is the kind of relation you say that you are establishing with your buyers. You have taken a crores of money. An entire super tech is standing on that buyer's money. And one more thing, when I have talked to my demand, he has told, I have told that I have sent a mail for clarification from you how this HDFC agreement has been changed. No, we cannot give you anything. You ask for CRM and other things. No, why you are inventing and you are threatening that we will charge this, that, or we will do this. This is the language you have taken a money till top floor. Now you are sending a demand for 12 floor. You are doing the absolute sitting. I can show you 10 proofs right now. Do you have an answer for that? And the possession. Yeah, there is a HDFC schedule. You used to send a demand letter. I have been making the payment. There was a schedule you have followed. Like second floor, third floor, fifth floor, 12th floor, and the top floor. I have given my money till top floor. Now suddenly there is a demand letter which says 12th floor. How backward construction is going on? This is the. And sir, one more thing regarding this payment of me. अगर मेरी ड्यू डेट अगर 10 को है, सुपर टैक्स से ही अगर मुझे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि पेमेंट डिले का आपके दिन में कितने दिन का टैट है? 10 तारीख यानी 10 तारीख को ही पेमेंट आना चाहिए या 2-4 दिन आगे भी चलता है? मैं आपसे ये पहले जानना चाहूंगी। उसमें पे बाय डेट होती है मैम। पेपर डेट होती है, राइट? पे बाय डेट। ये एक्चुअली कई लोगों के साथ ये भी हुआ कि जैसे 10 तारीख अगर मेरी पेपर डेट है तो मुझे लेटर ही 9 को मिल रहा है, 8 को मिल रहा है। कितने लोग हैं? ये तो इंटेंशनली भेजते हैं। एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, फिर बात भी बोलेंगे। ये हो गया 8 तारीख को मुझे लेटर आया, मैं बैंक जाती हूँ, बैंक वाले उसको फंड करते हैं, करते करते 11 तारीख को आपको पेमेंट आ गया। 10 का आपका डेट था, आपको 11 की सुबह आपके बैंक में आ गया। अब मैं तो माफ हो जाती हूँ एज अ लेट पेमेंट, ठीक है, पर उसका क्या अगर सुपर टेक मुझे लेट पेपर दे रहा है तो ये कई बार मेरे साथ, और ये मेरे ही साथ नहीं, कई दफे सभी के साथ हुआ है। सुपर टेक तो ब्लैक एंड व्हाइट देखेगा, बोलेगा मेरे अकाउंट में तो 10 तारीख को पैसा नहीं आया, तो
apart from that, I want to raise one. Yeah, probably we should seek the answer. पेमेंट डीले का सबसे पहले सर सॉल्व करवाइए कि क्या टैग है, क्या कंडीशन है, क्या टर्म है। आप कहते हैं पेपर डेट, पेपर अलॉटमेंट, सारा कुछ आपका पेपर पे ही चलता है सर, तो बता दीजिए, इसे भी पेपर पे डालिए। That is the most ridiculous thing. How funny is that? The way it is changing. Last night it was saying that December putting November putting even one day before, 2 days before the end date, your website is changing and it is doing that for next 6 months. So this is how you evaluate your section. How can you ask us to rely on that? Sir, No way. Whenever we send mail to CRM, we receive email that please check the website. It is the most अरे आंसर तो देना दो. Let them answer first. Let them answer first. या उनको पहले एक का आंसर देने दीजिए। हाँ, वो लोग नोट करिए, रिकॉर्ड करिए, नोट करिए, जो प्रेजेंट करिए, आंसर देने दीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करिए प्लीज। बाद में इनसे सिग्नेचर भी लिया जाएगा। एग्जैक्टली, इसके लिए हम 1 by 1 चलिए प्लीज, रिक्वेस्ट सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। ठीक है, आप पहले ये आंसर दीजिए। इसको नोट डाउन करिए और उसके बाद सिग्नेचर आगे जितने भी बैठे हैं भैया प्लीज आप 1 to 1 करिए, बिकॉज़ उनको रिप्लाई तो देने दीजिए यार। आंसर प्लीज। हाँ सर, वो लेट पेमेंट का बता दीजिए प्लीज। जब डिमांड जाती है मैम, तो यूजुअली जो डेट होती है डिमांड लेटर की वो फर्स्ट होती है ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑफ दैट मंथ, साइकिल हर मंथ में होता है, तो उसमें होती है। और पे बाय डेट यूजुअली 18-19 होती है या 15 होती है। मतलब बेसिकली हम ये सोचते हैं कि 2-3 दिन लगेंगे पहुंचने में, तो आपको मोटा मोटा 15 दिन मिल जाए या मैक्सिमम 10 दिन तो मिल ही जाए क्लियर, जहाँ पे आप पेमेंट कर सकें। और जो पे बाय डेट होती है उसमें अगर पेमेंट आ जाता है तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, और अगर उसके बाद आता है देन डेफिनेटली इंटरेस्ट गेट्स चार्ज। सर बिल्कुल सही आपने कहा, जैसे कि आपने कहा कि हम जो लेटर है 15 दिन पहले भेजते हैं, ठीक है, कि 15 दिन जो ड्यू डेट टाइप्स होता है कि भाई इतने टाइम में आ जाना चाहिए। लेकिन वही मैं कहना चाहूंगी सर कि जो भी आपके लेटर जो रिसीव होते हैं, ठीक है, वो जैसे 15 दिन का जो ड्यू डेट होता है, जो मेरा 15वां दिन होता है वो 13वें दिन पे आ गया तो उसी पे आ रहा था। मैं आपकी बात समझ गया। उसी को और इम्प्रूव करते हुए हमने SMS और ईमेल का भी प्रोविजन अब शुरू कर दिया है। ये एज अ फीडबैक ही था क्लाइंट का, तो अक्रॉस प्रोजेक्ट्स हमने कर दिया है। लोगों को जिस दिन बनता है उस दिन SMS, उसके एक दिन बाद SMS भी शूट हो जाते हैं। अभी आपको हार्ड कॉपी नहीं पहुंची होती या ईमेल भी आ जाते हैं, इसीलिए ताकि यस यू कैन ऑल्सो बी प्रोएक्टिव और वो आपको भी कहीं मिस ना करनी पड़े डेडलाइन। वी अंडरस्टैंड। SMS वगैरह ये कितने टाइम से पहले से चालू हुआ है और ईमेल मतलब कितने दिन से ऑनलाइन हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड हुआ है? I have a classic case I'll share with you. ये इनकॉर्पोरेटेड देखो आपने ईमेल पे भेजा है लेटर, डिमांड लेटर। ऐसा लेटर ही कहता है ड्यू डेट इमीडिएट। नाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? इमीडिएट। अगर कहीं आई एम स्टिल सेइंग इन एन ओपन फोरम कि अगर कहीं पे ऐसी तभी दिक्कत है, वी आर देयर टू हेल्प इट सेटल। ऐसा कहीं नहीं हमने सेटल नहीं करा है, हम हमेशा सेटल करते हैं। अगर देखिए कहीं एरर आ जाता है, कुछ आता है, सिस्टम अगर है, बिकॉज इट इज ऑल सिस्टम जनरेटेड, अगर आता है वी ऑलवेज रेक्टिफाई। ऐसा नहीं कि वी डू नॉट रेक्टिफाई, वी डू नॉट करेक्ट इट। सर मैं जानना चाहती हूं कि SMS जो सिस्टम आपने जनरेट किया है, आया SMS हम लाइक देंगे, ये कब से? आई थिंक मोर देन अ ईयर, एक साल राइट सर। मैंने 2010 में परचेज किया था केपटाउन। मैम उसी हिसाब से वो चीजें हैं, सेटल इट, वी सेटल इट, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं सर, मोर देन अ ईयर मैं पकड़ के चलूं कि हमने 2013 में इसे लॉन्च किया होगा, बिगिनिंग के 13 में, 13 14 2 साल खत्म हो गए। अगर मैंने परचेज किया 2010 या 11 में और उस टाइम ये मेल ये SMS फैसिलिटी अगर नहीं है और मेरे से डिले मतलब मुझे लेटर नहीं मिला या लेट हो गया है, यानी मतलब मुझे पेनलाइज किया जा रहा है लेट पेमेंट चार्जेस करके, वहां पे 2 लाख 2.5 लाख 4 लाख इस तरह से। We are always there to help rectify things also. Sir, you as a client relationship manager या उसके हेड या मतलब इस तरह से आप बिल्कुल हेल्प करते हैं सर, बट फाइनल रिजल्ट सर 0 आ रहा है। दैट्स व्हाई इतना एग्रेशन आपको देखने मिल रहा होगा सर। सर एक HDFC वाले को भी जवाब। चलिए मैम, एक HDFC वाले को जवाब। हाँ, I stand committed to that and we'll help close this matter. आप जो मुझे बताएंगे, it would be a logical thing, it would not be a logical thing is what I can say as of now. Don't worry. Okay, let's please respond to HDFC issue. So sir, maybe if I will conclude this point, if the person is getting the demand letter just 1 or 2 days before, then the Supertech will rectify that if there any interest, delay interest has been charged
on the customer, right? Obviously, everything would be logical. It would be based on facts. ऐसा नहीं है कि it would be illogical या एक late करके. नहीं मैं आपको वही बोल रहा हूँ. यदि 1 day या 2 day before उसको मिल रहा है, that means it is illogical, correct? So guys, please note that whoever has been charged with such kind of the payments delay, please reach. सर वो जैसे कि कहा कि there will be a reasonable solution to it, there will be a logical solution to it. ठीक है सर. जैसे बैंक होता है कि एक मैं एग्जांपल सेट कर रही हूँ बैंक का ही. बैंक में अगर मैंने कोई लोन लिया और मैंने 3 या 4 EMI अगर मतलब मैं लेट करती हूँ ओवरऑल पीरियड ऑफ अ टाइम ऑफ द 10 और 3 years, वो मुझे लेट एज अ लेट कस्टमर या मेरे सिविल पे इफेक्ट नहीं होता. वो कहते हैं 3-4 बार चल जाता है, ठीक है. लेकिन मैंने ये सोच के लिया था कि आज 2010 में अगर मैंने केप टाउन बाय किया है तो यानी 2013 या जो भी इसका व्हाटएवर डेट है, ये 2-2.5 साल मेरे EMI चलेंगे, मतलब मुझे पेमेंट देना है और मैं तो कभी लेट होने नहीं वाली हूँ. इसमें अगर 2 पेमेंट भी मेरा फॉल्ट होता है, एक दिन भी ऊपर जाता है, तो मैं तो एज अ लेट पेमेंट कस्टमर नहीं हूँ, ठीक है. लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को हो गया 5-6 साल, ठीक है. हम 2015 में है. इस दौरान 4 हो सकता है कि मेरे जहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 2 पेमेंट मेरे से लेट हो सकते हैं, लेकिन अब 4 साल के दौरान मेरे से 10 पेमेंट लेट हो गए. तो एक लेट पेमेंट की कैटेगरी में किसी कस्टमर को डालने के लिए क्या आपके पास कोई डेफिनेशन है कि फलाना ने अगर 15 बार किया है लेट तो ठीक है, या 2 बार किया है तो ठीक है. एक मिनट सर, अगर कोई कैटेगरी ही नहीं आपने डिफाइन किया है, तो जब मैं आपके पास आऊंगी कि सर देखिए आपने तो मुझे कहा था कि रीजनेबल सोल्यूशन हो जाएगा, तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे उस टाइम? बिकॉज़ आएंगे तो सारे डिमांड्स के साथ आप आएंगे और हर एक डिमांड पे ही बात होगी. उसी हिसाब से ही अगर जैसा सर ने कहा कि अगर वो चीज नहीं पहुंची है और या पहुंची लेट है, उस हिसाब से ही उस पे प्लस माइनस होता है. ठीक है, क्या पता करें कि वो चीज हमारे पास एक पहुंची, आप बोलेंगे नहीं हमने तो भेज दिया. कई दफे तो ऐसे भी हो सकता है. बिकॉज क्या हुआ है सर कि जब मुझे पहले 2 बार मुझे लेटर लेट आया है, अक्सर कभी लेट आया है, तो मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, मेरे से बेवकूफी हुई है कि मैंने आपको मेल रिवर्ट नहीं किया CRM को कि भाई फलाना ये लेटर जो है मेरे से आप मेरे पास लेट पहुंचा है, तो मैं इसका पेमेंट क्या करूं, कैसे करूं. ये मेरे से गलती हुई है. आई एग्री. हो सकता है ऐसे किसी और के पास एक जिसका ब्लैक एंड व्हाइट था. But that's what actually he said, that probably it has to be evaluated. सॉल्यूशन के बाद फिर आप मुझे अगर ब्लैक एंड व्हाइट मानेंगे या ये बोल देंगे कि मैडम हमने तो टाइम पे भेजा था, तो उस समय मैं क्या करूं सर? सर आई हैव एन एग्जांपल फॉर दैट. मेरे पास डिमांड लेटर जो ड्यू था मेरा 15 सितंबर को ड्यू था. मेरे पास जो मेल आती है वो आती है 20 सितंबर को. मेरे पास ईमेल की कॉपी है और मेरे पास उस लेटर को लेके मैं आपके CRM में ही जाता हूँ. उनसे मैंने बोला कि आपकी जो पेनल्टी पड़ रही है मेरे ऊपर, ये 20 डेज की पेनल्टी है. इट कॉस्ट मी अ लॉट. अब ये डिमांड मेरे पास 20 तारीख को आता है. हाउ कैन आई मेक द पेमेंट फॉर 15 सितंबर? सर आपको कोरियर भेज दिया होगा. मैंने विच कम फर्स्ट, कोरियर और ईमेल? सर ईमेल तो मैंने ईमेल तो ये आपके 20 तारीख को आई है, मेरे पास प्रिंट है इसका. तो कहते हैं सर ये प्रिंट तो 1 तारीख को हो चुका है. मैंने आप प्रिंट करके अपने पास रखते हैं और मेरे पास नहीं भेजते, तो व्हाट आई कैन डू इन दैट केस? कहते हैं सर नहीं, यही सेम कंडीशन जब मैं आपके मिस्टर अमित शर्मा जो ऊपर बैठते हैं उनके पास आता हूँ. सर डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. आप इस लेट की प्रॉब्लम मत करो, क्योंकि मैं भेजता हूँ, मैंने लेट किया ना, आई टेक केयर ऑफ द थिंग्स. बट मेरे पास पेनल्टी क्रॉस का जो पूरा आपने एक लिस्ट बना के दी, उसके अंदर 1-1 दिन की पेनल्टी है. 1-1 दिन की. आप मुझे 15 की जगह 20 को लेटर भेजते हो. 15 डेज का टाइम यू गिविंग टू योर बायर्स. वेयर दैट टाइम पीरियड आई एम पेइंग पेनल्टी जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिले. एंड व्हेन आई एम सेइंग सर ये तो होता है हमारी तरफ से, तो सब चला जाता है, हम तो कोरियर ही भेज देते हैं. देयर इज नो सोल्यूशन एट द टाइम. राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर फॉर द फाइनल सेटलमेंट, बिकॉज मैंने 2 हफ्ते बहुत स्ट्रगल किया आपके CRM टीम के साथ में, उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया है. एंड आई हैव ऑल द थिंग्स इन रिटन. उन्होंने मुझसे सिंपली कहा कि सर हम आपको पेनल्टी दे रहे हैं ना, आपको भी पेनल्टी देनी पड़ेगी. मैंने आई एम रेडी टू पे पेनल्टी, बट जेन्युइन पेनल्टी. एग्जैक्टली. ठीक है, आप मेरे अकाउंट में 60,000 का अमाउंट आप ऐड करते हो, आई एम रेडी टू पे, बट जस्टिफाई दैट अमाउंट. अब वो जस्टिफिकेशन कुछ नहीं है. एंड ऑफ द डे मैं यहाँ 2 घंटे बैठूं, 4 घंटे बैठूं, 10 घंटे बैठूं, वो उनका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता. दे जस्ट मेक मी अ डिले फॉर अ कंप्लीट डे. फाइनल सोल्यूशन जस्ट दे के खत्म करो और कुछ नहीं है. क्योंकि लास्ट मीटिंग में अभी आपने आपका ये पॉइंट उठाया. लास्ट मीटिंग में जेंटलमैन ने आपको बोला था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और आपने प्रॉमिस किया था कि ओके वी विल रेक्टिफाई दैट, बट स्टिल द सेम कंडीशन. सेम कंडीशन. मैं उनके सामने प्रिंट लेके बैठा हूँ.
ये मेरा प्रिंट है, ये देखिए आप। कहते हैं सर हमारी तरफ से जा चुका था, आपको नहीं मिला होगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। मैंने विच यू रिकॉर्ड, यू फॉलो एग्जैक्टली, यू फॉलो ईमेल्स, यू फॉलो कोरियर्स, व्हाट यू फॉलो फर्स्ट। बोले सर जो पहले आ जाता है, मैंने SMS भी जाता है आपके पास, मैंने अगर आप SMS के बेस पे आते हैं कि बैंक डिसबर्समेंट दे देगा मुझे, तो आई एम लाइबल टू पे योर पेनल्टी। उस SMS को दिखा के बैंक को, बैंक देखो मेरे पास SMS आया है, सुपरटेक को डिसबर्समेंट दे दो विदाउट डिमांड लेटर, आई एम रेडी टू पे, बट देयर इज नो डिसबर्समेंट लेटर। सो व्हाट आई डू इन दैट केस, एंड माय अकाउंट इज नाउ सेटल्ड बिकॉज आई हैव कॉम्प्रोमाइज्ड, completely compromised, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। At that moment, I am the only person sitting in this office because I am the first person getting the position letter. Nobody else having the position letter in that moment. तो मैं अकेला क्या फाइट करूँ वहाँ पे आके? आज सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो इसलिए बैठे हैं। यहाँ पे बहुत लोग मेंबर ऐसे जिनकी बातें मीटिंग हुई, मैंने उसे यही कहा कि अगर आज आप मेरे साथ खड़े नहीं हो रहे हो, 2 महीने बाद आप ग्रुप में खड़े होगे और मैं तब तक अपना पेमेंट कर चुका, क्योंकि 19 दिसंबर मेरी लास्ट डेट थी पेमेंट की। इसी कन्वर्सेशन में आई एम डिलेड अगेन, क्योंकि आपका अगेन एक क्लॉज है कि अगर आप 19 दिसंबर तक पेमेंट नहीं देते हो, आप मुझे फिर पेनल्टी लगाओगे, मैं फिर भागूंगा, मैं आपको फिर 5,000 रुपए पे करूंगा। और उसमें भी एक लेटर और लिखा है आपका जो फाइनल सेटलमेंट लेटर है कि डिले पेनल्टी में 5 रुपए स्क्वायर फीट तो है ही, प्लस अगर आपने ऊपर पेमेंट नहीं किया तो 24% का इंटरेस्ट उस पर भी चार्ज करेंगे, जो आपके डिमांड लेटर में नहीं लिखा है, जो आपने ऑफर ऑफ पोजीशन लेटर दिया है, लेकिन जो फाइनल सेटलमेंट लेटर है उसमें लिखा हुआ है। So sometimes you show only one amount penalty, that is 5 rupees square feet. Second time you show 5% plus 24% interest again. So like what our pockets about यार, हम लोग क्या पे करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, क्या करें? मनी प्रिंटिंग मशीन्स हो व्हाट यार। सर ये क्रेडिट कार्ड वाले भी इतना नहीं चार्ज करते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड का सबसे हेवी इंटरेस्ट होता है इंडस्ट्री में। और दूसरी चीज ये है सर, इनके पास तो ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ है, इनको इतने नाक रगड़ने पड़े, इतने चक्कर रगड़ने पड़े हैं जिनके पास नहीं है सर। उनका तो क्या होगा? आप बोलिए सर, कैंडी वेब मेरे पास उनको मैंने दिखाया है सब कुछ। और अगेन मैं हर बार के लिए, मुझे फर्स्ट फ्लोर नहीं आने देते, क्योंकि यू हैव टू रिजॉल्व योर इशू ऑन ग्राउंड फ्लोर ओनली। आई वांट टू मेक सम सॉरी, आपको प्रॉब्लम क्या है? ये इशू है CRM team sitting idle, they are very slow in process। How shabby is that? You can't be treating the clients so shabbily। क्वेश्चन आंसर सब छाप देते हैं, वो हमें नहीं चाहिए सर, गिव अस अ कंक्रीट आंसर। सर आज की डेट में मुझे अच्छी तरह याद है कि लास्ट मीटिंग में भी इस जेंटलमैन ने यही क्वेश्चन उठाया था। आपने प्रॉमिस किया था कि ओके प्लीज कम ओवर देयर, वी विल सेटल दैट, बट स्टिल द सेम। वो तो भूल जाते हैं। I am coming with my final amount to pay off to Supertech just to settle everything because I'm totally compromised। The same scenario is here as well। I've also got that possession letter and Just let him speak अभी, क्या बोलते हैं? एक बार ये बोलिए। really charged heavily, which is not acceptable। Let him reply first. Let him reply first. Yes, please. Sir, my response after listening to you, it is sad. It is not that we are happy doing that. It would not make anybody happy making our clients miserable like this. And if that has happened, I will take it up as a case study and I will ensure that we set an example with your case itself, not a problem at all. Sir, can it be possible कि अभी अगर कुछ सेटल हो सकता? How many hours? Not hours. How many days? If some days. 24 hours, 36 hours, something. और क्या कोई सर अगर आप क्या केस स्टडी करेंगे तो सारे लेट पेमेंट वाले का नाम डालना है यार। डॉक्यूमेंट रेडी? I'm making a final payment just because of case study you have taken 2 months, there is no solution। I'm making final payment because you guys always chasing me। If you check my account, there are 2 emails I sent to you। 2 ईमेल मैंने भेजी है आप लोगों को। एक में मैंने कहा है कि मेरा आप लोग मुझे चेस करो फाइनल पेमेंट के लिए। दूसरा मैंने भेजा है इसके लिए कि व्हाट इज प्रीपोजिशन एंड व्हाई देयर इज नो पेनल्टी ऑन सुपरटेक। आज तक मेरा ही फॉलो अप है उस पर, देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम सुपरटेक। बट जो अमाउंट मेरा प्रीपोजिशन लेट हो रहा है उसके लिए जो आपकी CRM टीम है दैट इज वेरी एक्टिव, ही इज फॉलोइंग मी अप फॉर एवरीथिंग कि आप उनसे बात करो, पेमेंट करो। लेकिन जो सेकंड ईमेल है सेम कस्टमर की, उसको आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, क्यों? सर लेटे आप टाइम उसको पे जब तो पीछे जवाब पड़ दो जाते उसके हैं। लिए, आप केस स्टडी के लिए फिर से 2 महीने ले लोगे मेरे से, मैं पेमेंट कर दूंगा। अब उसके बाद क्या होगा? जो मेरा तो गया पैसा, ठीक है, आप मुझे रिफंड तो करेंगे नहीं। To set a positive example, intention is not to set anything negative। One, two, आपने अभी क्या पेमेंट करा है as on date, अभी आपने जो ऑफर ऑफ पोजीशन किया उसमें क्या पेमेंट करा है, क्या नहीं करा है।
मेरे पास इस समय जो लेटर है सिर्फ चेक बैंक से ड्राफ्ट लेके आया हूँ, मैं अपने हिस्से का पेमेंट कर चुका हूँ, सिर्फ मुझे जो रेस्ट का अमाउंट मुझे पे करके मुझे एनओसी लेनी है आज। दिस इज माय सिनेरियो एंड ऑल द थिंग्स आई सेड, जो मेरा एडजस्टमेंट होना था वो हो चुका है, क्योंकि आई फेल टू एक्सप्लेन एनीथिंग, क्योंकि आपकी CRM टीम दे आर सेटिंग विद द प्री डिफाइंड लेसंस, व्हाटएवर कस्टमर से यू ऑलवेज फॉलो वन लाइन। मुझे लेना है मतलब अब मैं उस कभी कभी आपकी CRM टीम इतनी ज्यादा एग्रेसिव होती है सर, मैं आई एम सॉरी टू से, वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव होती है कि उनसे वहां बैठ के लड़ना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन? They are persons, they are sitting downstairs, they are like कि उनके पास टाइम नहीं है सर, बहुत लोग खड़े हुए हैं। अब उस केस में मैं आपको अप्रोच करूँ हर बार? अगर आपको हर लोग अप्रोच करने लगे तो CRM मेंबर्स यहाँ नीचे किस लिए बैठे हुए हैं? और वो लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं, पहले मेंबर को बिठाएंगे, वो अपना चाय कॉफी पियेंगे, फिर वो एक बंदा जाएगा, 1 घंटे बाद वो मेरी फाइल लेके आएगा और उस फाइल के बाद वो मुझे सोल्यूशन देंगे। इतने बीच में जो मेरे बाकी कलीग से बाहर बैठे हुए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभी मैं भी उनकी लाइन में बैठा होता हूँ, मैं हमेशा केबिन के अंदर नहीं होता। अब वो एक कस्टमर पे 1.5 घंटा वेस्ट करते हैं, जबकि वो इशू मुश्किल से 20 मिनट का नहीं है। और सर ये तो स्ट्रेटेजी है कि बंदा खुद थक के भाग जाए। सर नहीं सर, प्लीज Sorry, अग्री Mr. करिए Soni. सर, इसे अग्री Do करिए। you have any solution? Do you have any solution of this question? Yes, yes. Do you have one single सर पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, if there has been something which he is saying it is illogical, it has to be removed, it would not be there. सर दैट मींस कि हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम जिन लोगों को भी लेट पेमेंट हुआ है, हम इनके नाम के साथ एक लिस्ट जमा के आपको दे दें और आप सबका लेट पेमेंट आप देखेंगे, उसको वेव ऑफ करने की कोशिश करेंगे, राइट? इनफैक्ट वेव ऑफ करेंगे, कोशिश तो बचाने की। नहीं एक मिनट, आई थिंक मिस्टर सोनी का पॉइंट ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं इंडिविजुअली एक का केस देखूंगा। अगर ये रेयर केस होता तो बनता है कि आप इंडिविजुअली देखें। 80% ऑफ पीपल हैव द सेम प्रॉब्लम, सो यू कैन नॉट एड्रेस देम इंडिविजुअली। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि इसी को करते हुए आगे इसी हिसाब से we can frame a clear cut example for the team sitting downstairs ताकि cases close वैसे ही हो। There should not be anything illogical. यहाँ पे ज़्यादातर की प्रॉब्लम ये है, what is the जो डिले पेमेंट आप ले रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। Solve it for everybody. Solve it for everyone. Which is exactly action नहीं है, that should not be asked is what I am accepting your point. I am also saying that we should not charge anything which is not acceptable. ऐसी कोई बात नहीं। Why he has been compelled to pay the payment? Then that's the question arises in that. Charges are so exorbitant. Today I am here to actually pay my position this thing, and looking at what people have actually charged me, say 2 lakhs, 3 lakhs late fine. Bullshit. This is like, why am I going to pay 3 lakhs back? And you people will pay 5 rupees per square feet. फिर वही बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 2 lakhs, 3 lakhs वो कैसे बना, उसकी मैथमेटिक्स क्या है। We can spend that time with you, discuss it on each and every demand and obviously reach to a logical conclusion. It is not that anything would be illogical. You want sorry, I'm just interrupting it here. अदर चार्जेस आप बढ़ाते जा रहे हैं, ये लेबर कहाँ से आ गया? ये नए चार्जेस जो आप सर आप कहना चाहते हैं कि लेट पेमेंट का हम एक लिस्ट बना के आपको दे रहे हैं, आप उस पे केस स्टडी करेंगे, राइट? स्क्वायर फीट का इसका कोई टाइम फ्रेम कुछ नहीं है, तो इसका ये तो मतलब इस चीज़ का कोई देगा भी नहीं, बाकी लोग कैसे देते हैं? जो जिनको अब लगा है उनके लिए यस वी विल बी क्लोजिंग दैट, और अगर आपको भी कहीं पे कोई दिक्कत है वी विल हेल्प। सर इसमें पिछली बार मैंने सजेशन दिया था सर आपको कि जिनका भी आपने अभी जो पेमेंट हुआ है, क्यों आप आज तक का अगर किसी का लेट पेमेंट चार्जेस है तो वो दिखता क्यों नहीं आपकी साइड पर? क्यों नहीं? आपने प्रॉमिस किया था कि यू विल टेक केयर एंड यू विल शो एनी इंटरेस्ट। इवन आई हैव सेंड अ मेल, स्पेसिफिक मेल ऑन 11th November 2014 to CRM team with a copy to you. Please let me know what is the super area as of now, as the construction has been completed. Is there any variation which you will charge me? And what is the my account position, whether any interest for delayed payment is outstanding on my account? Please let me know. No answer has been received by me till date. आप बताओ ये तो सर आपने उस समय प्रॉमिस किया था आप इंडिविजुअल मेल दीजिए, वी विल रेस्पॉन्ड। मेरे ख्याल में 11th November को अभी 2 महीने तो हो गए हैं, कोई मेल का रेस्पॉन्स नहीं आता।
इवन ये जो HDFC वाली डिमांड का मैंने मेल दिया, आपका बंदा मेरे को टेलीफोन पे ही धमकाता है, और उसके बाद में मैं जब बोलता हूँ कि मेल का आप रिप्लाई दीजिए, वो CRM टीम का काम है, CRM ये तो that is again वो कोई रिस्पांस नहीं, कोई मेल का रिप्लाई नहीं। Amit and Sunil Chopra, literally I asked that please justify about the HDFC, the schedule which you have changed. He have said ये तो आपको देना ही पड़ेगा और मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जो करना ही करना है। मैं किसी HDFC के पास जाऊंगा पैसे मांगने, they are not only giving two lines reply. This tri-party agreement is not valid. It's a BPA. Then why you have raised earlier demand? Now I have asked the confirmation. If you are raising this one low demand, how will you satisfy earlier agreement? This is you will charge any interest on that. That is not confirming. You make a payment, you will not give any information. And you know there is a three-party agreement between HDFC, Supertech and सर HDFC के बारे में बात Yeah, please. जो अभी recent demand दी है, it is only affecting the HDFC. There are so many people here, those have been affected because of this HDFC and maybe India Bulls. Okay, right. There are lenders, different lenders. HDFC is one of them, and it is a major lender in this industry. Yes. तो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे HDFC ने अपने बाकी सब ने तो जो हमारे अलॉटमेंट लेटर में जो था पेमेंट प्लान माइलस्टोन्स थे उनके हिसाब से पेमेंट देने के लिए ओके थे। HDFC ने अपना एक पेमेंट प्लान दिया अंडर द परव्यू ऑफ कि आपका फ्लेक्सी प्लान है तो ऐसा है, CLP कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है तो ऐसा सॉल्यूशन सर ऑडिटोरियम में HDFC का जो प्लान था, it was 7%. But they are charging 2.71 something, which is 9% as per the guarantee. Now they have taken 9% because it was lesser. 20,000 का लॉस है। अगर मैं अभी दे देता हूँ, मुझे पोजीशन में देना और आपको ठीक है, एक साल में अगर पोजीशन देंगे तो मेरा फिर It's a tri-party agreement, so you have to get the consent from the buyer. How can you change that? They must have given some money to HDFC. Yeah, please continue. HDFC का जो पेमेंट प्लान था उसके हिसाब से the milestones were different. Now with the progress of the site, probably credibility established हुई है, तो उनके भी दिमाग में about the builder, the progress that Supertech has done. Sir, ये तब लॉजिकल है जब बिड में हो आप. You have reached to the last. I already have made the payment till top floor. We understand what you are trying to say. Sir, let him finish. एक ही उद्देश्य से आए हो कि ये डिमांड आपको नहीं देनी है तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आप जो करना चाहते हैं आप करें। आई एम नॉट देयर टू फोर्स एनीबॉडी कि आप ऐसा करें, आप ऐसा ना करें, प्लीज। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि HDFC ने भी, क्योंकि आपने ट्राइपार्टाइट एक वर्ड बोला जिसमें HDFC इज पार्ट ऑफ इट, राइट? तो HDFC से ही बात है। HDFC ने जब उसकी ओके करी है कि यस दे आर रेडी टू अलाइन इट विद दी माइलस्टोन्स ऑफ द अलॉटमेंट लेटर, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर ले सकते हैं, तो फिर हमने ये डिमांड जारी करी है जिस हिसाब से अब आप भी उसी उसमें आ गए, जैसे बाकी सब लेंडर्स हैं, बाकी सब बैंक्स हैं, बाकी सबका है, आप भी उसमें आ गए इस डिमांड के लिए और आपका भी 95% आ गया। रही बात जो आपने कही कि इस पे व्हाट अबाउट इंटरेस्ट एंड ऑल दैट, ये क्लियर कट डिमांड है जिसमें हमने पे बाय डेट दी है। उस पे बाय डेट तक अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप पेमेंट कर देते हैं और HDFC को ही करनी है आपके बिहाफ पे, वो कोई ऐसी उसमें इंटरेस्ट वाली बात ऑटोमेटिक नहीं आती है, दैट इज वेरी क्लियर। सो इसमें कहीं पे कोई ऐसी दिक्कत या क्वेश्चन मार्क नहीं है कि हमने ट्राइपार्टाइट को वो करा है या हमने कहीं अलग है वो करे है। इट इज ओवरऑल कि HDFC को भी हम मेन उसमें आने में कोई दिक्कत नहीं हुई एज फार एज अदर लेंडर्स आर प्रॉब्लम है कि दिस डिमांड
by paying, after paying this demand, you will not raise anything, because what you have done on website, you have changed our payment status as part payment. So you will again after 6 months you will raise this issue. No, when I will come this you have made part payment of that demand. This is 2 lakhs rupees interest is outstanding with you, and I will be in soup. So please confirm on worst case scenario में अगर वो भी होता है, you have all the demands and automatically it will get settled also. मैं इतना भी कह दूँ, but however a confirmation to HDFC people can be sent on mail. That is not a problem at all. It would be. सर ये बताइए, इसमें आपने एग्रीमेंट किया, आपने ओके लिया HDFC से ओके लिया, इसमें बायर का एग्रीमेंट नहीं होगा? हाउ एग्रीमेंट में तो फाइल ही सर ये पेमेंट प्लान जो अग्रीमेंट अलॉटमेंट लेटर है ना सर, अलॉटमेंट लेटर आप तो माने हो शेड्यूल that if there is any change in the payment plan, it will be a consent from the buyer. Right. This down the line it is mentioned. Allotment letter is final document for you, sir. No, but there is additional paper which says the plan of HDFC. वो सिर्फ HDFC no sir, it is on a supertech letterhead and signed by supertech. सर बाकी सब लेंडर्स वहाँ पे पैसा करा है सर कि जो पेमेंट प्लान है ये चेंज हो सकता है. HDFC ने अलग डिक्टेट करे टर्म्स, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, इसीलिए वो सुपरटेक में ओके करा वो. लेकिन आप लास्ट में अब आप पोजीशन का पेमेंट अब मांग रहे हैं जो मेरे को 1 साल के बाद देना है. सर जो पेमेंट मेरे को 1 साल के बाद देना, मैं टॉप फ्लोर तक दिया हुआ है सर. पोजीशन का तो 5% है. ठीक है, मैं समझ गया, रह गया अभी. सर अब जो टॉप फ्लोर तक मैंने सब पेमेंट कर दिया था, अगर HDFC का फॉलो अभी तक हुआ है मेरा, अब आप लास्ट पेमेंट जो मेरे को देना है 1 साल के बाद, because technically that portion by all the other people of who had taken. Sir, we know intention behind this. The reason you already know there is another year going. No, 1 साल लगेगा पोजीशन देने में. Why should I wait for another year asking this payment? इसीलिए आपने बोला कि भाई ठीक है अभी तो ये पेमेंट आप मेरे को दे दीजिए. सर HDFC वालों के अलावा सबने दिया है. सबने दिया है, लेकिन जब मैंने फ्लैट लिया था, अलॉटमेंट लेटर के साथ जब मैंने फ्लैट लिया था, मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं HDFC का पेमेंट प्लान मेरे को अट्रैक्टिव था. आपने जो बोला कि भैया ये HDFC का है, आप इस हिसाब से पेमेंट देंगे, तो मैंने एग्रीमेंट किया. मान गया है, बाकी लोगों ने जैसा करा है बाकी लोग क्या किया मुझे नहीं पता. बैंक मान गया, आपके HDFC बैंक मान गया. बायर नहीं माना ना, बायर ने तो जो रिटन साइन किया था अलॉटमेंट लेटर आप पढ़ लेना अपना. सर आपने एक अलॉटमेंट फ्लेक्सी प्लान दिया है जो आप सबके साथ फॉलो किया है. दूसरा आपने एक शेड्यूल मेंशन किया है, HDFC ने जो एग्री किया था आपके साथ, उसमें अब HDFC ने एग्री कर लिया है, वो पेमेंट रिलीज कर देंगे अदर देन द पोजीशन अमाउंट. सर HDFC ने एग्री किया बट चेंज नहीं हो सकता ना. सर आप जाके डिस्बर्स कराएं, आपको कंफर्मेशन वो कर देंगे सर. लोन 20 लाख का वाला क्वेश्चन रेज किया है CRM टीम को. यस सर, उसका तो रिप्लाई कर दीजिए. वो एक आप लिख लो HDFC वालों को. सर आप मुझे हमने सर HDFC दे देगा, मैं मानता हूँ HDFC दे देगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना मेरे को. क्यों लोन का? क्यों अगर आज मैं लोन ले रहा हूँ सर आई एग्री, वो आपको 12th फ्लोर पे देना पड़ता पहले, अगर HDFC पहले मान जाता. 12th फ्लोर तक का पेमेंट मैं दे चुका हूँ. अगर मैं आप समझे नहीं, HDFC अगर आपका जो अलॉटमेंट लेटर में पेमेंट प्लान है उस पे माना होता जैसे और लेंडर्स माने थे. सर माना होता वो. सर माना क्यों होता? आज माना है तो आज हमने उसके साथ अलाइन करेंगे. पहले अगर पेमेंट होता मैं सर HDFC मान गया ना, आप मान गया, आप HDFC से बात में क्लॉज रखते ना कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू चेंज द पेमेंट. यू मेंशन दैट देयर वाज नो. हमने कोई शेड्यूल नहीं चेंज करा. HDFC ने हमारे शेड्यूल को सुपरसीड करा था, वो वापस उस पे आ गया है. दैट इज व्हाट द डिफरेंस. सर आप एक फॉर्मल कम्युनिकेशन रिलीज करवा दीजिए ना कि ये डिले पेमेंट नहीं माना जाएगा. वो हमने करा देंगे. नहीं, फॉर्मल टू ऑल, नॉट इंडिविजुअली. लेकिन ऑब्वियसली टू ऑल. द डिमांड लेटर हैज बीन रिसीव्ड फॉर्मली टू ऑल. आप एक कम्युनिकेशन रिलीज करवा दीजिए. कोई दिक्कत नहीं. इसमें व्हाट कम्युनिकेशन पेमेंट It will not be considered as a delayed payment and no penal interest will be delay means we are not going to make the payment now. You have to make the payment now as per their plan. Yes. But even if you make the payment, it will not be considered as a payment. Quite please, quite. Yes. Let me introduce you to my director, sir, Shri Rajiv Rai. Hello. Sir, they are all our clients of Cape Town. Okay. And अभी जो बात आई है वो पोजीशन में डिमांड किया है उस पर इंटरेस्ट लगा है.
उस पे बात आई है जहाँ पे एक ग्रीवियंस आया है कस्टमर का कि नहीं सुना गया, वो लॉजिकल नहीं था। तो व्हाट आई हैव टोल्ड हिम वेरी क्लियरली कि आई वुड सिट विद दैट पर्सन, और अगर वो इलॉजिकल है वी विल रिमूव दैट एंड दैट विल बिकम अ पॉलिसी फॉर ऑल। हमारे ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि हम इलॉजिकल चीज लें। Adding to it, this was discussed in the last meeting as well, and the person is here to pay the extra charges because the settlement was nobody is mentioning it. सर, वो 80% की बात नहीं है। एक मिनट, उनको तो पोजेशन लेटर मिला, इसके लिए उनको लेट पेमेंट चार्जेस हुए, लेकिन बात है सारे लोगों की जो यहाँ पे बैठे हैं और जिनको कई दफे लेट पेमेंट चार्जेस हुए हैं। ये लेट पेमेंट का चार्जेस हमने सर से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था आपके एब्सेंस में। उन्होंने कहा कि एक रीजनेबल, एक लॉजिकल मैडम सोल्यूशन होता है, पर मैंने वही कहा कि आप डिफाइन करिए सर लॉजिकल और लॉजिकल सोल्यूशन क्या होगा, उसका कोई डेफिनेशन अभी तक आया नहीं है सर। तो हमें ये लगता है सर इनका ये है कि 2010-2011 में जब आपकी डिमांड्स कहीं थी तो वो लेट पहुंची थी, जिसके कारण से हमें उतना टाइम नहीं मिला जितना आप देना चाहते थे। कहीं पे 5 दिन मिले, कहीं पे 2 दिन मिले, जिसके कारण से अगर हमारा लेट हुआ है उसके कारण से आप लोगों ने इंटरेस्ट ऐसे चार्ज करा है। तो वो दैट्स व्हाट आई सेड कि दैट इज नॉट दैट कि हमने ऐसा कहीं पे इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए, बट स्टिल वी आर रेडी टू लुक एट इट एंड क्लोज दैट इशू इन अ प्रॉपर पॉजिटिव मैनर। इट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग जहां पे हुआ है। ठीक है सर, तो मैं वो नाम लिस्ट सारे दे दूंगी। मुझे सर हमें मुझे ये पूछना था कि कईयों को जो पोजेशन लेटर मिल चुका है तो क्या वो एकदम रेडी टू मूव इन है? क्या पार्क, स्विमिंग पूल में पानी सब कुछ रेडी है कि हम जाके वहाँ पे रह सकते हैं? Why pre-possession? Just to get the before last that, amount of money. Before that, the one अगर question is. पोजेशन लेटर मिला है तो सर आई जस्ट वांट टू सी द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। क्या उसका एक कॉपी मिल सकता है हमें? उसका बेस्ट एग्जांपल There are the few guys got the pre-possession letter, but this is the first new terms we are receiving. What is pre-possession? सर एक मिनट, Please explain what is this pre-possession. Possession we can understand that our company will will accept that, bank will accept, everyone will accept that, and based on that we can plan the IT, whatever the benefit we can get from the government. But what is this pre-possession? पॉइंट इज सर कि मेरे पास प्री पोजीशन लेटर मिला और मेरा लास्ट पेमेंट जो था 19 दिसंबर, यानी मेरे को 19 नवंबर को लेटर मिल गया था। आई वॉज ईगर टू सी माई फ्लैट, क्योंकि मैं उसका फाइनल पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो आई शुड सी माई फ्लैट की वेयर इज द प्रोग्रेस। मैं अपने फ्लैट के अंदर जाता हूँ, मेरे फ्लैट के अंदर ना वायरिंग है, ना किचन है, ना टॉयलेट है, ना बाथरूम है, ना प्लास्टर है, नथिंग। आई क्लिक द फोटोग्राफ, ओके, आई क्लिक द फोटोग्राफ, सेंड इट टू CRM कि this is the final status of my flat. Now you are asking for final payment. How I justify this payment? I waited 1 month, exactly 1 month. I visited again. My door was locked. The person, Mr. Jawar, was there. He opened that door for me. I was in impression. Now there was some progress. Surprisingly, the same situation. And what they were saying, have you make the payment? And what does it mean? If I'm not making a payment, no progress in my flat, and the flat in front of me was completely finished because the person is submitted the NOC. It means you're taking the payment from the customer and then finishing the flat of that particular customer only. It means if I'm going to move in my flat, might be out of 6, 2 flats are ready and 4 flats are in labor are working there. How can I stay there? Today also, if you go my flat, it's still not completed and there is 1.5 months, more than that. And when I say today I'm coming with the final payment, I deposit the things. You force your labor to finish the work without any finishing part, just rush and finish the work. तो वो ठोका पट्टी में मेरा फ्लैट तो खराबी होगा, क्योंकि उसके बाद आप तो लीपापोती करके दे देंगे, वो उखड़ना तो बाद में शुरू होगा। वहाँ पे फ्लोर वाइज प्रोग्रेस नहीं है, NOC वाइज प्रोग्रेस है। जिसके NOC है उसका प्रोग्रेस है। मेरे पास फोटोग्राफ्स दोनों मंथ के हैं, यू कैन सी द प्रोग्रेस। वो कहते हैं सर किचन 1 हफ्ते में, सारी फिनिशिंग 1 हफ्ते, सर महीने भर में आपको मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा ठीक है यार, यू रेज द प्री पोजीशन लेटर टू मी, एटलीस्ट शो सम प्रोग्रेस। वहां पे आप 8 फ्लोर के ऊपर तक चले गए, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनकी NOC आ चुकी है। सो व्हाट द मीन ऑफ पोजीशन एंड प्री पोजीशन इन दैट केस? हर बिल्डर जो पोजीशन ऑफर करता है उसकी पूरी बिल्डिंग के फ्लैट्स रेडी होते हैं, मेरे पास नहीं है वो।
at least Sir, tower एक और wise, चीज- if your one tower is ready, let him answer then this question. you release the possession letter. What does it mean? Two flat on this floor is ready, two flat on this floor is ready, and you are sending the possession letter. Is it bullshit? Okay, now everyone Let needs him to answer, quiet. let him answer. Let us hear him. Let us hear him, please. Quiet. See, if you look at what is being practiced throughout India, it is not. I'm not naming any particular developer. I'm not naming even my company. Pre-possession letter is something where you also get satisfied that yes, the property that has been offered to me and for which allotment letter has been issued in my name is as per what I had booked. So that is just an inspection, and where you give your consent, yes, this is okay. You can go ahead, and after that, certain financial documentation are needed to be executed, which you say NOC or whatever you say. After that is executed, then a message from the CRM goes to the project team. You complete these apartments, and after completing, then you get the final possession of that. One question in that, then if it's a pre-possession, just to see that the progress is as per our understanding, then why there is a demand of last payment that is to be made on possession, not on pre-possession? The biggest problem is someone shared that why not complete tower in one go and you do it. The biggest problem is once you complete everything, and it is not necessary that everyone who has booked property in that particular tower is going to occupy that maybe within next couple of months or maybe next 3 months, right? Can you precisely give answer of Sachin's problem actually? What I just want to know. Like, I'm standing for my answer here. Yes. अगर जो मेरा problem है, जो मैंने अपनी क्वेश्चन की अपनी एक्टिविटीज करी, I'm just looking after that answer कि ऐसा क्यों हो रहा है? He is not satisfied with the inspection. Right. This is That is the purpose of that. Once then you why are should called, he pay the demand 5%? once you are called there and you find certain He deficiencies. doesn't find exactly. Please give detailed answer of this problem. We are all पेमेंट करेंगे तब payment नहीं. He is saying he will go and inspect the flat. He go and inspect for the it. purpose of pre-possession. Yeah, Now go and we are inspect it. clear. You don't find the flat is in the condition of possession. Then See, that is, and he should not pay. there is a gap. You're not getting that point. See, pre-possession and possession are two things, and in between And this. 5% is on possession or pre-possession? On possession. Sorry? 5% is applicable on possession or pre-possession? The offer of possession. Yeah, you didn't Not give the possession. offer of possession. Offer of possession. See, pre-possession is something which precedes offer of possession. Yeah. Once you go there, you see your property. You you give your go ahead to the project team. Yes, I'm. Then why you are basing the 5% demand on the pre-possession letter? Is it See, that is what both the things are being linked. Both the things are being linked. It's a diplomatic. Pre-possession, you see, and then you get you need to pay that. 5% demand on the possession letter, which we are not offering yet. It's a diplomatic answer. That means आपका कहने का मतलब है कि फ्री पोजीशन या ऑफर पोजीशन दोनों एक ही चीज है, कोई दो डिमांड क्यों लग रहा है? लेकिन फ्री पोजीशन में आप 5% मांग रहे हैं सर. अभी आपने क्या बोला कि फ्री पोजीशन वो चीज होती है जो आपको ऑफर ऑफ पोजीशन से पहले हम देते हैं. पैसा जो है आपको ऑफर ऑफ पोजीशन पे देना होता है. तो इन्होंने आप नहीं समझ रही है. प्री पोजीशन फिजिकल एक्टिविटी है, ऑफर ऑफ पोजीशन डॉक्यूमेंट की एक्टिविटी है, ऑफर ऑफ पोजीशन का लेटर इशू हो रहा है और उसके साथ आप जा रहे हैं वहां पे देखने के लिए, वो इंस्पेक्शन उसको आप प्री पोजीशन बोलते हैं. But अभी flat ready. But if the flat is not ready, what is the Flat will not be ready. Definitely flat will not be ready because you go, you see, and then I give my go ahead, I make the payment, and you get it ready. No, sir, let us stick to his case. If he is not satisfied with the एक लिखा हुआ है. Because his flat was not ready. Flat was not ready. His flat was not ready. He was supposed to make the payment so that he could get the NOC from corporate office, and that NOC goes to the project department. After which it completes. मेरे ख्याल में जहाँ तक भी मतलब ये होता है कि अगर पोजेशन लेटर आता है या मैं पूरा पेमेंट करती हूँ तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए बिल्डर्स के पास. तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया आप लोगों बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ना कोई एक्टिविटी ऑन नहीं होती है. नहीं ऑन कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना कोई पर कंप्लीट तो हुआ ही नहीं फ्लैट, तो उसका मतलब क्या होता है? कंप्लीशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जो अपार्टमेंट ऑफर किए जा रहे हैं लोगों को, बायर्स को, दे आर फिट फॉर ऑक्यूपेशन. Yes. What is occupancy बोलो या पोजीशन बोलो. What does it How do you define that occupation? And that occupation is you don't mix it with the fitment of lighting or maybe fine tuning of wiring or final coat of the whitewash.
Don't mix with that. Occupancy कैसे होगी? क्या वही ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। This is the correct word. See, occupation or completion certificate is issued once all your services are complete. All the services are complete, your structure is ready, and you are ready with the pre-final code in your file. If we see by the law, there is no such pre-possession word mentioned in the agreement. No, this is only this possession. is just to facilitate you to have a physical visit. We don't need that. You don't need that. Then you make the payment, get the possession, not the possession. We will make the payment only at the final completion. Then give us We will make the payment only at the offer of possession, not the pre-possession. What is the pre-possession? Why you have not mentioned in the appointment letter? See, when you get the offer of possession, you go to the project site or not? You tell me. Once you get the offer of possession, Whether you are do giving or visit not, we are regularly going there to see that. That is okay, but I am talking in technical terms. An offer of possession has been made by the developer. You go to the project site or not? You go there, you see the asset, you see your property, and after that you make the payment, you get the NOC, and then your completed thing is handed over to you. Objective behind that, you finally see if there is any flaw, small thing, but that is not to see the flaw. That you even don't have. The guy has given an example. The kitchen is not there, wiring is not there. You cannot offer a possession if the wiring is not there. These are the mandatory, has to be there. Possession is ready to move. Of course, we understand the final inspection has to be done, but it doesn't mean that you don't have at all, the Sir, basic एक things in मिनट, place. excuse me. इसको ऐसे समझे, I would like, because daily basis पे as CRM हम करते हैं. Sir, forget about possession letter, forget about the charges. Let's talk about delay. हर कब मिलेगा? सीधे मुझे I can suggest one thing because पॉइंट आप लोग प्लीज नोट्स को डिस्कस कर दीजिए सर हमारा पहला पॉइंट How many days you have given the offer of possession? कितना टाइम? आपका कितना दिन ऑफर ऑफ पोजीशन हो गया मिले? After issuance of NOC. No, नहीं ready है सर. हाँ, NOC issue होने के बाद. NOC देखिए पहला चीज क्या है, मेरे पास जो एक क्लिक मैं वहाँ लेने गया, मैंने सोचा कि मैं अपना फ्लैट देखूंगा और उसके बाद मैं आपको पेमेंट करता हूँ. There was some confusion TDS calculation also कि मुझे TDS calculation वो आपका सर्विस टैक्स की कैलकुलेशन प्रॉब्लम था जो बाद में बहुत टाइम बाद सॉर्ट आउट हुआ, उसमें मैंने पेमेंट करना शुरू किया. द प्रॉब्लम इज कि जो मेरा प्री पोजीशन में मेरा फ्लैट है वो आज तक रेडी नहीं है. वो सिर्फ जो फोटोग्राफ में अभी भी है वो अभी भी वहाँ वैसा ही है. ठीक है, मैं वहाँ पे आज पेमेंट कर देता हूँ, आप मुझे 1 महीने में फ्लैट दे देते हो. ठीक है, मैंने पॉजिटिव साइड लिया था, मुझे फ्लैट दे दिया, जो आपने पोजीशन ऑफर कर दिया, लेकिन मैं वहाँ रह नहीं सकता क्योंकि उसी फ्लोर पे 4 फ्लैट ऐसे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया है, बट दे आर नॉट मेकिंग एनी पेमेंट फॉर दैट. माइट बी दे आर नॉट कमिंग विद एनओसी और दे आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस. So in that case, how can person live on one floor which is not completed properly? तो मैं वहाँ कैसे रहूँ? और See, when you talk about completing the apartment, it is only the superficial work which is left. Maybe in terms of electrical. It is not a pure labor related activity where you have to lay floor, you have to create walls or partition walls. That is not the case. But labor should be there, right? Everybody can come as a labor. See, if we talk of any project where your possession is also being handed over by the मेंटेनेंस चार्ज जो है ये एडवांस में क्यों लग रहा है और ये रिबन का एक इस पर डिस्कस करिए. एक लेबर चार्जेस जो है ये क्यों लगाया जा रहा है? सबसे पहले डिले पे आ जाइए. लेबर चार्ज डिले आप इसकी चार्ज और वाटर कनेक्शन चार्ज ये बताइए यहाँ पे डिले जो डिले पेमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, पावर चार्ज, एडवांस मेंटेनेंस चार्ज, बाहर डरना ये इंडिविजुअल बुकिंग हो गया. इंडिविजुअल नहीं
इंडिविजुअल नहीं होगा, नो इंडिविजुअल प्लीज। जब लेबर ने आपने बना के दिया नहीं, अरे नो इंडिविजुअल जाके बैठिए, हर किसी को लग रहा है। नहीं आपकी बात पहले तो आप लोग ना आपस में बात कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन, 4 लोग एक साथ क्वेश्चन पूछो, मैं जवाब नहीं दे पाएंगे। एक आप लोग सारे पीछे लिखा हुआ है, आप लोग सारे जो भी क्वेश्चन में आप पीछे एक आदमी सुने, चैलेंज के लिए स्पीक ऑन आवर आप एक आदमी को कर सकते ये पूछेंगे। गाइस कीप पॉइंट, अदरवाइज दिस विल गेट डिलेड। पॉइंट्स हम लोगों ने लिख रखा, फिर इंडिविजुअल लेकर के आप इसके बाद अब बैठ जाइए आप लोग जो भी क्वेरी रेस कर दिया आप इनके थ्रू रेस करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक आदमी बात करेगा ठीक है। सबसे पहली बात ये कि ये पोजीशन में इतना लेट क्यों हो रहा है, बार-बार ये डेट जो चेंज हो रहा है, इस पे मैंने क्लैरिफाई कीजिए। देखिए पोजीशन का अगर डायरेक्ट आप देखिएगा तो डेवलपर के कंट्रोल में नहीं रहता है, बिकॉज सारा लेबर रिलेटेड है। आज भी इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन सारा लेबर से हो रहा है, और लेबर का जिस तरह का कैरेक्टर होता है कि कोई सीजन आता है, कभी फेस्टिव सीजन हो गया, कुछ हो गया, अगर वो चले गया तो लौट के नहीं आते हैं। यार इस बंदे का तो एटीट्यूड ही अलग है यार। आपको मिलेगा, किसी का नहीं हुआ, आपका ही भी आप चले जाएंगे। सर आपका एटीट्यूड तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग comes with the predetermined mind. We will say you are asking question. Yeah, you won't reply on this query. You can leave the room. Please leave the room. Let me finish. This is not the first meeting. I think you have come in the first time in this meeting. We have worked with this gentleman from the past so many meetings. The way he is talking and the way you is talking is totally different. The design is very different. भाई हम तो नहीं करेंगे, लेबर नहीं क्या करेंगे। प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। एक साल 2 साल की बात नहीं है, देखिए आप सारा आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन नहीं करते, बट अगर जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये हो सकता है। आप पैसे ना पे करो लेबर को, हमें क्या करना है नहीं, लेबर इस तरह से नहीं जाता जो आप सोच रहे हो कि 365 दिन आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि इट इज नॉट इन द सुपरटेक्ट, इट्स इन द लेबर है। सर प्रोवाइड पैसा दे दिया goes for the construction directly. It is routed only through contractors. So We are not there to acknowledge the contract or labor. We have a contract. तो आपको नहीं पता कि आपके लेबर ये 1 महीने में छुट्टी पे जाने वाले हैं या मरने वाले हैं या वो हमारी मैं कहती हूँ XYZ अगर लेबर नहीं है तो यार ABCD लेबर की प्रॉब्लम है। अगर आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट आप साइमल्टेनियसली रन कर रहे हो तो वो किस बेसिस पे कर रहे हो, क्या नॉर्थ आई हमारे कितने साल बाद लॉन्च हुआ था, नॉर्थ आई आधा खड़ा हो गया। सर आप एक बार बताओ। I request each and every. Please give a logical answer. Please give a logical answer. But we should
Sir, we are waiting. I am responsible answer for it. We have noted down all queries, one by one. Just provide us a solution. And madam, please, keep maintaining the point wise names of projects. Nobody will ask. Excuse me. Who will ensure that only one person will speak? Who will ensure? You tell me. That is 10 people are standing in front of me and they are asking different questions. They want me to answer simultaneously to all the questions. You take it. मैडम ने को बोलने दो क्या होता है Please answer. You just give your presentation and that is it. That is final. Just Just you start your presentation. Nobody will speak for that, for these points. After that, we will ask them. And please talk some justification answer, not that. There is a delay in possession. आपने जैसे इससे पहले बताया आपके पास जुलाई से रेस जुलाई से जून से कितनी मीटिंग कर चुके मैं तो पहली बार तो आपने जो पिछले मिनट में मीटिंग पीसी हुआ है फर्स्ट में जहाँ पर है ना these are the same point which have been repeated. They don't have at all. हाई हो रही है वहाँ लेते हैं इनके मुंह से लेते हैं लिखा के स्टैम्प साइन सब लेते हैं यार प्लीज ठीक से बात करता एक सेकंड जवाब कौन देगा ये जो डिले हो रहा होगा ठीक है अभी जो आप लेटेस्ट जो आपने जो शेड्यूल दिया है पोजीशन का वो सही है या फिर और वेट करना पड़ेगा और भी चेंज होगा अभी ये आपको क्या लगता है पोजीशन शेड्यूल टावर वाइज देखना पड़ेगा हां सर टावर वाइज जो भी आपने दिया उससे हम बोले लगा है या नहीं देखिए अगर आप ये बोले कि एक कमिटेड कि हाँ ये जो दिया गया बिल्कुल 100% स्टिक करेगा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टिक टू दैट बहुत मुश्किल है क्योंकि वो कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में नहीं है जो मैं आपसे शेयर पहले भी कर रहा हूँ ठीक है वो टाइमलाइंस थोड़ा बहुत आगे बढ़ भी सकती है Please don't react. Please don't react to every point. Please listen. Let him give answer first. Sorry sir, please 1 minute. Sir, you remember in the month of July we have a meeting with Mr. Kheda and the one more director was here. Right? At that time we have discussed about this delay of the possessions and we demand to increase the penalty charges from the 5 rupees per square feet to either the 10 rupees per square feet or the different guys was demanding for the 20%, the 24%, blah blah. But we agreed on that point. If the possessions date which was given in the July, which was tower wise, you have given the list, I have that list. If it will extend behind that, you will think of giving the 10 rupees per square foot as a penalty charges. And you have told us the director or your board of directors are not here. You will take the 2 months to discuss on that part and you will come back after the 2 months. Now it is the 6 months. Now you please tell us, because the date is already crossed, what is the commitment from the Supertech on the penalty charge? Yes, nice. Please. Point is what ये आपको वो लेबर please let them answer now. Let them communicate very clear. Let them answer now. Good. Yeah. Quite. And we have a meeting of minutes of that meeting, which is signed by the Suvichita. We also have a copy of that, and the Supertech have a copy of that. Yeah. पंद्रह में भी था
कुछ बोल तो नहीं हमारा कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल किसका होगा? Can I suggest one thing? See, what I believe is majority of the problems are linked with the position of your unit, right, and the delay in position. I'll reply on these points also. I'll reply. That's not an issue. Can we organize a meeting at the site itself where I can also request CMD Mr. R.K. Arora to come there, and so that if any decision is to be taken, you just mentioned because I'm not aware that some decision was taken during your meeting in July. We have photocopy. I just asked him. No, not tomorrow. 24th or 25th of January. Today is 10th. No, after 2 weeks. After 2 weeks. Okay. नहीं कोई नहीं, कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा, इसलिए मैं साइड पे बोल रहा हूँ कि आपका टावर भी वहाँ रहेगा, आप भी वहाँ रहेंगे, हम भी वहाँ रहेंगे. We can organize a meeting at the site, so that it becomes very easy to physically go, see the tower, see the unit. If there is any problem, एक मेल कर दो, आप लोग को एक मेल कर दो कि we will organize a meeting at the site at 24th or 25th of January. Communicate in that. 24th is Saturday only. 24th is Saturday. 24th is, 24th is, I think 26th is Monday. 24th is Saturday. And you mentioned Mr. Arora is coming in that meeting. 24th is Saturday. किसी ने मेल कम्युनिकेट किया हुआ है? मेल कम्युनिकेशन ऑलरेडी है, रिप्लाई करेंगे. Mr. R.K. Arora will be there. Can you refer his name? किस नाम से मेल है? संजीव शर्मा. संजीव शर्मा के नाम से मेल है आपके पास. आपकी आईडी पे मैं दे दूँ. ठीक है, you all agree ना कि आपके मेल आईडी पे जाएगा तो you have to mail ID. That will resolve the majority of the decisions or whatever. Instead of one, please leave 2 minutes. It becomes very easy to resolve. Okay, cut out. One more ID. I have 2 IDs. I already have नहीं 2 एक साइड समझ दिलाया कि आपने स्पेलिंग देखिए आपके पॉइंट जो लिखे गए ये आप पहले से डिस्कस करके आए ताकि वहाँ पर नया पॉइंट डिस्कस ना हो. मैं आपको ये बता दे रहा हूँ. इसमें डिस्कशन आज चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है क्यों. पोजीशन का वो एक्स्ट्रा चार्जेस है, वो पॉइंट नेक्स्ट जो ये हमारे कॉमन एजेंडा है वो उस दिन वहाँ पर यही डिस्कस होना चाहिए. इस पे आगे डिस्कशन के लिए और टाइम नहीं होना चाहिए. नहीं टाइम नहीं, आपने जो पॉइंट किए मैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे क्या है क्यों है. लेवल बहुत नाराज है, प्लीज गिव द जेन्युइन आंसर. मैं टेक्निकल आंसर नहीं, टू द पॉइंट आंसर दूंगा. देखिए अगर कोई चीज मुझे पसंद आती है तो मैं बताऊंगा, नहीं पसंद आती है तो मैं नहीं करूंगा. मैं टेक्निकल नहीं करूंगा. तो मैं आपसे बेटर है जैसे पोजीशन डिले का है, आप ऐसा आंसर दें कि लेबर डिले कर रहा है, ये बेटर आप सॉल्यूशन बताइए. वो रीजन है, वो सॉल्यूशन नहीं है मेरे हाथ में ना. मैं आपको देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. केप टाउन में क्या डेडलाइन होता है कि हम जनरली अपने लिए डेडलाइन करते हैं कि मेरे को 2015 में जैसे आपने अभी कहा दैट दिस इज अ प्रेस्टीजियस आपके प्रोजेक्ट है और आप इस साल में इसे कंप्लीट करना चाहते हैं. जस्ट गिव अस अ डेडलाइन, आप मेरे को हमको मेल कर दीजिए. दैट इज ओके. व्हाट यू से एक चीज मैं बोलना चाहूंगा प्लीज वो हमने लास्ट टाइम भी बोला था, वो भी मेरे पास मीटिंग में कोई ऐसा 1-2-4 दिन का डिले है तो उसके कारण से आप छोड़िए लेबर चार्जेस वगैरह क्या लेंगे वो तो फिर वो लेके आ जाता है ना. हमारे पास राइटिंग का चक्कर किया हुआ है, साइन किया हुआ है ना हमने. आप 6 मंथ बता रहे हैं. अगर कंस्ट्रक्शन पे में अपडेट देते हैं आप 4 महीने के बाद दो महीने में जिस तरीके से आपने उसको चेंज किया है वो बताते हैं आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है. आप 2015 से 2014 लेट से आप 2015 करते हैं 2 महीने, फिर आप 6 महीने का उसको 2015 आगे कर देते हैं, फिर मिड कर देते हैं, लेट करते हैं, फिर विदिन अ मंथ आप 2016 कर देते हैं. वो
What is the logic behind this? नहीं तो अभी कह रहे हैं ना कि हम एक सोल्यूशन बता रहे हैं, ऐसा करते हैं आप सोल्यूशन बताइए, आप खुद सेल्फ रिलायंट होकर ये बताइए कि आप क्या पेनल्टी या क्या आप ले ले उसमें कर रहे हैं कि हमें 2015 में टावर मिलेगा, टावर वाइज आप हमें पोजीशन लेकर अब आपके ऊपर डिसीजन छोड़ रहे हैं, हमें नहीं पता, वी आर नॉट लेबरर्स, हमें नहीं पता आपको क्या, वी आर नॉट कॉन्ट्रैक्टर्स। आप ये देखिए कि हम खुद सेल्फ रिलायंट होकर हम ये कर रहे हैं कि हम इसमें अपने ऊपर हम ये पेनल्टी लगाएंगे। अंडरस्टैंड डिले हमेशा होता है प्रोजेक्ट में, बट द वे दैट यू आर एक्सटेंडिंग इट, this is not अब टावर वाइज हमें मेल कर दीजिए, दैट इज इट। अपना अभी कह रहे हैं कि हम 2015 में अगर हम कर रहे हैं तो आप ठीक है, हम लोग फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भाई साहब साइट पे मिले थे, उनको उन्होंने कहा कि आप कम टू माय ऑफिस। This is not a right place. This is not the right place to discuss. Diwali preparation party में we were there. There was some issue. Mr. Sodhi was also there. He noticed the thing and we followed Mr. R.K. Arora there. उन्होंने सीधे कुछ भी सुनने बात नहीं मना कर दिया. Come to office and discuss the things there only. वो ठीक है। मैडम दोनों सिचुएशन डिफरेंट है, वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। मैडम दोनों सिचुएशन डिफरेंट रहेंगी, बिकॉज ये खुद हम उनको बुलाएंगे तो वो ये नहीं कह सकते कुछ और, वो इवेंट कुछ और था। तो मैं कहती हूँ इनके बताए हुए डेट पे क्यों नहीं, हमारे बताए हुए हम तो कह रहे कल मिलो, एवरीवन शुड टेक अ सीट ना, सब यहाँ बैठे हुए हैं, सबको अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज आप लोग सीट अपने बैठे। इलेक्ट्रिसिटी में किसी का कोई डाउट है तो बिल्कुल डाउट है, सबके डाउट है, इलेक्ट्रिसिटी सर एक एक करके एक पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या अरे वो पॉइंट तो बोलने दीजिए ना, सुन लेते हैं फिर पोस्टमार्टम करते हैं यार, पहले ठीक है लेट अस हियर पेशेंटली यार, देन विल स्टार्ट पोस्ट मार्क यार आप एक बार पहले आप कर दीजिए ना, आप बताइए सर ये पॉसिबल है आपके लिए। हां बोल लेट अस स्पीक प्लीज कम। फ्रीज सर्किट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी शेयर किया है, फ्रीज सर्किट है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज मंथ वाइज हो सकता है सर, कि मंथ वाइज इसमें क्या मंथ वाइज भी मुश्किल है, मंथ वाइज तो मुश्किल है नाउ which means you are not giving any dates and events taken place. Now what you force us to file a case in consumer court or what you are doing? Because you are not giving any sign that you are going to make a good progress, you are not giving any right commitment. The way that you are changing your dates doesn't have any logic. Okay, उसके बाद I don't think there is a anymore. We might have to extend till we might have to wait till 20, which we can't do. So do you force उसके बाद सर I am not interested in listening about what are the other charges, जो भी पेमेंट करना है, क्योंकि पहले मेरे को अपनी फ्लैट की प्रायोरिटी है कि फ्लैट का पोजीशन डेट मेरे को क्या करना है। No, the excuses which you have given, you don't have a control on labor, you can't give any date. Which means that you don't have an answer. नहीं कहा था कि लेबर की प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आप सही हो या वो सही है। सिंपल एग्जांपल है, अगर काम घर में मेड नहीं है कि खाना बनाने वाली, तो क्या आप खाना नहीं खाएंगे? हमारी भी जुगाड़ करके खाना करेंगे, अगर लेबर नहीं है तो जुगाड़ करिए। और हमने लेबर को कभी पैसे नहीं दिया, हमने तो कंपनी को दिया, हम कंपनी से सवाल कर रहे हैं। और अगर कोई लेबर मर जाता है तो क्या उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है? मान लीजिए क्या अगर आप लोग नहीं रहेंगे, डायरेक्टर नहीं रहेंगे, तो क्या सुपरटेक नहीं चलेगा? दूसरा डायरेक्टर लाया जाएगा? सवाल ही नहीं होता। Project execution we are also तो फिर ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमेशा वेबसाइट में लिखा था अर्ली 2015, एंड 2015। अरे यार आपका एंड दिसंबर है, अर्ली जनवरी है। पहले मंथ में इनको ज्यादा पता लगा। एक सेकंड देखिए, हर जगह यदि फाइनेंशियल चार्जेस कंपनी के ऊपर आते हैं तब उनके ऊपर बर्डन होता है इस चीज को फिनिश करें, इसलिए हमने वो पॉइंट पिछले बार भी उठाया था। अदरवाइज इट विल बी द नेवर एंडिंग स्टोरी। यदि हमसे 24% मांगा जाता है डिले में, तो आप लोगों को भी वो हिट फील होनी चाहिए कि यदि आपकी तरफ से बार बार डिले हो रहा है तो हमको उस पर आप क्या बैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम गाइस मिडिल क्लास फैमिली, वी आर गिविंग द रेंट, वी आर गिविंग द ईएमआई। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वी गाइस टू लिव विद आवर फैमिलीज। सिंपल सा ये रहेगा कि या तो आप ये बताइए कि यदि आपकी तरफ से डिले हो रहा है तो आपको वो जो पेनल्टीज जो है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आपको ये लग रहा है कि आप यू कैन नॉट कमिट फॉर द पोजीशन, यू कैन जस्ट बी इंक्रीज द चार्जेस
and just leave it. और वो भी पर मंथ होना चाहिए, वो भी पर मंथ होना चाहिए, मिलना चाहिए, लास्ट में सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। तो भैया अभी हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे, आप हमें अभी पोजीशन से आप हमें कमिट कर सकते हैं। सर ये पॉइंट भी हमने उसी दिन बोल दिया था कि जो आपका मैं भी आपसे वही कह रहा हूँ, मैं लीगल तरीके से ही आपको बता रहा हूँ। ये पॉइंट भी उसके साथ एग्रीड हुआ है कि यदि मान लीजिए ये डिले होगा, ये पॉइंट भी था कि आप जो है मंथली पेमेंट जो है बैक करेंगे, ना कि एट द ऑफर ऑफ कंडीशन को सेटल करेंगे। ये पॉइंट भी इन्होंने जो है ऑलरेडी 6 months बिफोर एग्रीड ऑन दैट। ऐसा कुछ बताए पर मंथ के चार्ज, अरे कुछ बोलिए, बोलिए बोलिए। नंबर वन आपने इंटरेस्ट और डिले पेमेंट रखा है, लेट पेमेंट चार्जेस, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, नंबर 3 पावर बैकअप चार्जेस, नंबर 4 एडवांस मेंटेनेंस, नंबर 5 वाटर कनेक्शन, लेबर वेलफेयर, 7 ITL। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसमें क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब आई एम नॉट क्लियर। सर जब मैंने फ्लैट लिया था मुझे कहा गया था कि सारी इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव है, डॉक्यूमेंट जो बोल रहा है उस हिसाब से हो जाएगा। में लिखा हुआ है, दिक्कत कहां है? अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट में लिखा है, अगर मान लीजिए उसमें लिखा है कि ऑल एडिशनल चार्जेस आर इंक्लूसिव इन दिस, आप जो है इसका चार्जेस है, अगर किसी का नहीं भी लिखा हुआ है तो सर यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट आउट ऑफ दिस। नो इट इज नॉट प्रॉफिट। जब लिया था तो 15 नहीं सर रेट तो टाइम डिसाइड करता है। आपने जब अपार्टमेंट लिया था तो एक्स प्राइस था, आज जो आपका यहाँ पर विद्युत देता है इलेक्ट्रिसिटी, वो जो चार्ज देगा या आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो दे रहे हैं मेरे को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सर वो पावर बैकअप को अलग छोड़िए सर, आपके अपार्टमेंट का बिजली की 2 लाइनें जाती हैं, एक लाइन जाती है जो डायरेक्ट फीडर आता है वहां से लेकर के आपके अपार्टमेंट में आएगा, और एक आगे जो जनरेटर। तो अलॉटमेंट लेटर चेंज हो गया होगा, तो सब होना ही एग्रीमेंट भी चेंज हो गया होगा, एग्रीमेंट भी टर्म्स चेंज हो गया, एग्रीमेंट उसका पहले वाला है, एग्रीमेंट से वही ऑल से में है कि विल बी गिवन प्रोवाइडेड बाय द यूनिट चेंज हो गई। हाँ वही अमाउंट चेंज हुआ, फिर थोड़ा सा ना वो अपार्टमेंट के अंदर अगर आप देखिएगा तो एक आपकी मेन जहाँ पे मीटर लग रहा है वहां से पूरे अपार्टमेंट को सप्लाई जा रही है, एमसीबी लगी है, जहाँ एमसीबी लगी है और आपके पैनल बोर्ड लगे और वहां से सारा सप्लाई चल रहा है। एक हो गया वो पूरा का पूरा जिसको आप बोल रहे हैं वो वहां पे वो चीज कवर हो रही है। वो तो एक हो गया उस पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट जहाँ पे टर्मिनेट कर रही है पावर ऑपरेशन की लाइन, वहां से लेकर के और फिर आपके हर अपार्टमेंट में लाइन जा रही है। ठीक है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट होती है, या आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वाला कॉस्ट है ये उसके लिए उसका केवीए से कैलकुलेशन का सर वायर जो सर वायर आज अगर मान लीजिए मेरा 2 kVA का है उसके अगर मैं 25 kVA का लोड उसके ऊपर डाल रहा हूँ नहीं झेल पाएगा, तो वो पहले तय हो जाता है आपके अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट में, आपके रिक्वेस्ट लेटर के बेस पे कि आप कितने कैपेसिटी या कितने उसका लेना चार्जेस आपके अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। ये केवीए के ऊपर ही आया है, इसमें है कि 1 केवीए का है, ठीक है, आप अब दे रहे हैं 2 केवीए एक्स्ट्रा, तो क्या बिल्डर्स को नहीं पता था कि इतना बड़ा सोसाइटी इतना बड़ा ये सब क्या 1 पे चल पाएगा या 2 पे चल पाएगा? अब जैसे इन भाई साहब आया है, व्हाट यू जस्ट सेड, आपने कहा है कि केवीए अलॉटमेंट लेटर पे लिखा होगा उस हिसाब से होगा, बाकी हम चार्ज करेंगे। ये आपने कहा अलॉटमेंट लेटर में अगर देखा जाए, गॉन थ्रू द अलॉटमेंट लेटर वेरी नाइसली, उसमें लिखा है कि 1 केवीए मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, which is not लॉजिकल। सबसे पहले तो 1 केवीए नहीं देना चाहिए, कम से कम 2 केवीए देना चाहिए इफ इट इज ऑल इंक्लूसिव। आपने जो उस चार्ज में लगाया था 2900 रुपए ऑल इंक्लूसिव, बिकॉज इन एनी केस 1 केवीए पे कुछ नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, आपने खाना पूर्ति करने के लिए 1 केवीए दे दिया, अलॉटमेंट लेटर में लिख दिया 1 केवीए, ठीक है। अब आइए दूसरे पॉइंट पे, 3 केवीए से कम पे नहीं चलेगा, ठीक है, बिकॉज यू नीड 2 ACs, ठीक है, यू नीड फ्रिज, यू नीड अ टीवी, ठीक है, एंड व्हाटएवर बुलशिट जो भी है, ठीक है, तो आपको 3 केवीए चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि ठीक है 1 केवीए तो मैं आपको दे रहा हूं, अब 2 केवीए का चार्जेस ये है, विच दीज चार्जेस आई थिंक इज एक्सॉर्बिटेंट,
20,000 पर KVA should not happen. 1 point. तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आप सिंपल बताइए. हाँ, या तो सुपर टेक इतना बेवकूफ है अब कि बोलिए, उन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया. मैडम या तो अपनी क्वेरी खुद रेज कर लीजिए, आप ऐड ऑन मत करिए. आप और इंटेलिजेंट लोग बैठे मुझे उनको थोड़ा यूज कर करने लीजिए दीजिए अपना सर brain. बस. अच्छा ठीक है. मैडम बस अभी कहीं उसका आपका जो पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि जो भी बायर आए वो 3 kVA, 5 kVA, 10 kVA के लिए ऑप्ट करें. चलिए ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ बायर्स आज भी जो हम लोग अपार्टमेंट हैंडओवर कर रहे हैं वो 1 kVA में दे रहती है और उनको नहीं जरूरत पड़ती है. आप दिखा तो दीजिए. कहते हैं हमें बिजली आप एक लेटर मुझे दिखा मुझे दीजिए. दिखाना नहीं है. आप 1 हमारे kVA जो हैंडेड ओवर यूनिट्स हैं, हैंडेड ओवर प्रोजेक्ट्स हैं, वहां आप विजिट करके देख लीजिए कि 1 kVA में दे आर मोर देन हैप्पी. दे आर नॉट. अच्छा listen, now let me which one? The mandatory जो जनरल Mandatory एक 1 के लिए आप kVA. कह रहे हैं कि बैकअप का एक के लिए कह रहे हैं. मैं 1 kVA बैकअप की अगर बात कर रहे हैं तो 1 के लिए आई एम सेटिस्फाइड. हाँ, तो that is what I'm telling not you. backup. So I'm not talking about the backup charge of this thing. I'm talking about the main line. जो main power connection. Now listen guys, एक मिनट. अरे भाई सुनिए तो सही. So what I'm trying to say is कि बैकअप मुझे नहीं चाहिए भाई. मुझे बैकअप एक के लिए चाहिए. ठीक है? As simple as that, which is very logical. मुझे नहीं चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी मेरे 4 घंटे जाती है, मैं पंखे में काम चला लूंगा. 1 kVA फाइन है. बट दी मैंडेटरी इलेक्ट्रिसिटी पावर जो आप कह रहे हैं वो तो 3 kVA से कम तो होगा नहीं, या 2 kVA से कम पे तो होगा नहीं है? तो फिर आप जो चार्जेस ठोक रहे हैं 40,000 44,000 रुपए विद सर्विस टैक्स है, वो कहाँ लॉजिकल है? दूसरी बात एक चीज और मैंने देखा है आपके इसमें, जब आप डिमांड्स मांगते हैं तो सर्विस टैक्स मिला के आप मांगते हैं. ठीक है? फिर अचानक आउट ऑफ द ब्लू फिर मैं देख रहा हूं 1.5 लाख का सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा आपने ठोक दिया है. व्हाट इज दैट? सो नाउ फर्स्ट कि आप पावर बैकअप का जो आप चार्जेस कह रहे हैं उस पर आप मुद्दे पे आइए, उस पर बात कीजिए, एंड देन इस पे बात कीजिए कि फिर सर्विस टैक्स किस बात पे आपने ठोक दिया है. बोलिए. सर्विस टैक्स ठोका नहीं जाता है. गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, कोई ट्रांजैक्शन इस तरह का इट इज कवर्ड इन द सर्विस टैक्स, यू हैव टू पे दैट. I have to pay. I'm clear. अच्छा, now I'm clear. Let us not use word ठोक दिया, ये कर दिया. Let us not use that word. नहीं. अगर कोई भी लायबिलिटी गवर्नमेंट की, you have to pay that. I agree. आपने 24% तो फिर 24% इंटरेस्ट पे ठोक दिया. लेट फाइन पे वो तुम ठोक देना इस्तेमाल कर सकते हैं ना. हाँ बिल्कुल. ठीक है, चलिए इस पे मैं ठोक देना इस्तेमाल कर सकता हूं. हाँ ठीक है, सरकार ने ठोका. ठीक है, चलिए मैं मान गया. अच्छा, तो आप ये बताइए, तो आप ये क्या सर्विस टैक्स है? मैं इसका फंडा नहीं समझ में आ रहा कि सर्विस टैक्स आप कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट. ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे आप सर्विस टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि मेरे फ्लैट का कॉस्ट आया था 33 लाख समथिंग. आपने कहा कि भैया सरकार ने सर्विस टैक्स बढ़ा दिया है, इसलिए मैं आपसे 1,25,000 रुपए या 1,10,000 रुपए मैं और आपसे ले रहा हूँ. ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको देता हूँ. तो आपने कहा कि भैया मैं इंस्टॉलमेंट भेज रहा हूँ, इसके साथ हर इंस्टॉलमेंट के साथ सर्विस टैक्स लगा के दूंगा. वो मैंने पैसा आपको दे दिया. ठीक है, फिर जब अब पोजेशन ऑफर लेटर जो भी आया तो उसमें मैं देख रहा हूँ एक नया सर्विस टैक्स है जो कि 1,20,000 का है. व्हाट इज दैट? एडिशनल 20,000 रुपए. कोई रेट तो बढ़ा नहीं है बाद में सर्विस टैक्स का. जब आप ऑफर जब आपके पास एक बोलने दीजिए. थोड़ी सी शांति रखिए. एक सवाल का जवाब तो मिल जाएगा. अच्छा, एक मिनट. हाँ सर, एक सवाल का जवाब मिलेगा. अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमने 2 बार सेम चीज पे सर्विस टैक्स लिया है तो वो नहीं है. ठीक है, वो नहीं. अच्छा ठीक है, क्या है वो? सर्विस टैक्स एक ही बार हुआ है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में अगर है तो वी विल हेल्प दैट, मेक यू अंडरस्टैंड. एग्जैक्टली, दिस इज वन आंसर. ये इशू मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ. इसके लिए मैंने 20 दिन भागा हूँ मैं. सर्विस टैक्स एग्जैक्टली आपने नहीं लिया है. जो आपने लेटर बनाया ना, पोजीशन लेटर, उसमें कंफ्यूजिंग फिगर है वो. आपने हर बार प्रॉपर्ली आपका सर्विस टैक्स पहुंचा है, और आपके मिस्टर मनीष जो अकाउंट से बैठते हैं उनने मेरे साथ बैठ के 2 घंटे उन्हें लगे समझने में और मुझे समझाने में कि सर्विस टैक्स का एडिशनल 1,65,000 रुपए कैसे आया. नाउ आई एग्री, मैं उनसे सेटिस्फाई हो गया. 20 दिन बाद मुझे पता चला कि हाँ सर्विस टैक्स जेन्युइन है. इससे पहले हम लोगों की मीटिंग भी हो चुकी थी जहां मैंने यही रेज किया था कि 1,65,000 का सर्विस दोबारा क्यों ऐड हो रहा है. तो उन्होंने बताया कि वर्चुअल अमाउंट रखते हैं लेकिन हर बार ऐड होता है. ये जो आपका टोटल अमाउंट है इसके अंदर 1,65,000 एडेड नहीं है, ये आपको एक अमाउंट बता रहे हैं, बट इट वॉज पेड. इट वॉज पेड, इट वॉज क्लियर. बट जो आपका लेटर आया स्टेटमेंट वो इतना कंफ्यूजिंग है. इन भाई साहब क्यों मुझे लाइन लग गया. मैं 1 महीने तक डॉक्यूमेंट से खोल के बैठा था कि मैंने क्या कर दिया ये. ठीक है, ये तो मान लीजिए इन्होंने इसकी वजह से अब सर इसकी वजह से 20 दिन जो मैंने वेस्ट किए, मैं 19 दिसंबर की डेट निकल गई सर. 5 रुपए स्क्वायर फीट की पेनल्टी लग गई मेरे ऊपर. अच्छा, इन्होंने ये कहा, इस पे मुझे आंसर मिला क्योंकि एक जेन्युइन आंसर इन्होंने मुझे दिया.
समझ में आ गया, वही जेन्युइन आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। एक्चुअली सर मैं बता रहा हूँ, एक बार नीचे सीआरएम टीम वालों ने 2.5 घंटा वेस्ट किया, मिस्टर अंकित जो नीचे बैठते हैं वो आंसर नहीं कर पाए। फिर मैं जब दोबारा आया विद द रेफरेंस ऑफ मिस्टर संजय अरोड़ा सर के, तब उन्होंने मुझसे मिस्टर मनीष से मिलवाया और मिस्टर आपके जो बंसल जी हैं उनसे मिलवाया। वो दोनों मेरे साथ बैठे, उन्होंने मेरे साथ 1.5 घंटा वेस्ट किया। उसके बाद वो कंक्लूड कर पाए, ओके दिस इज द वे वी चार्ज द सर्विस टैक्स एंड दैट इज व्हाई इट इज हियर। After 20 days I got my answer, then I start initiating this payment process part. मैं 1,65,000 कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास दिमाग में ये चल रहा था। टोटल आपके प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर जो सर्विस टैक्स वो एग्री था मैं, वो था, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग है, आप सबके आंसर देते थक जाएंगे, यहाँ सब लोग ये आंसर लेके बैठे होंगे। ये तो एक मुद्दा, वो इतना कंफ्यूजिंग बनाया गया है कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, ये और आपकी सीआरएम टीम, आई एम सॉरी टू से, they have no accounting knowledge कि वो कैसे उससे कैलकुलेट। मुझे कहा सर ये बढ़ गया, मुझे पता है बढ़ गया, मैंने पे किया, सब कुछ पे करा, मैं सर्विस टैक्स में देना चाहता हूँ, मुझे ले लो प्लीज, लेकिन 1,65,000 रुपए दोबारा क्यों ऐड करके दिखा रहे हो? ठीक है, नहीं, एक ये मुद्दा, अच्छा ये मुद्दा तो अच्छा अब आइए इस मुद्दे पे, बोलने देंगे तब तो। अच्छा, अब दूसरा मुद्दा ये है, कॉमन मुद्दा, एक तो कॉमन मुद्दा ये है, दूसरा ये बताइए कि ये जो है आपने जो केवीए का चार्जेस लगाया है, डोंट यू थिंक इट्स एग्जॉर्बिटेंट? बिकॉज वी थिंक इट्स एग्जॉर्बिटेंट। आप लोग क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि 10 से 15,000 ज्यादा लेते हैं, और बिल्डर्स के भी देख लें, एग्जॉर्बिटेंट नहीं है। और ये अगर आप देखिए जो एक्चुअल कॉस्ट निकलवा करके ना प्रोजेक्ट के अंदर जब डिटेलिंग करवाएंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ठीक है, दिस इज मोर लेस जस्टिफाइड, ज्यादा नहीं। और दे रहे हैं सभी लोग दे रहे हैं। अच्छा, बट वी स्टिल थिंक इट्स एग्जॉर्बिटेंट। वो ज्यादा है, वो आपको मानना ही पड़ेगा सर, क्योंकि आप सुपरटेक के पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अब सारे प्रोजेक्ट के पैसे हम ही लोग से लेके बना रहे हैं ना अल्टीमेटली। तो मैं नॉट पेइंग का पैसा मैं क्यों दूं? वहाँ पे तो इतना लंबा बिल्डिंग खड़ा हो गया मेरे बाद, वो 40 वो जो कह रहे हैं वो सही है सर, चार्जेस आप लगाइए लेकिन रीजनेबल चार्जेस लगाइए। वो रीजनेबल है और उसकी आप चिंता मत करिए, क्योंकि सुपरटेक ऐसा नहीं कि आज पहला अपार्टमेंट देने जा रहा है। ऑलरेडी हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 6,000 अपार्टमेंट है। हमारा तो पहला ही है। राज साहब, एक मेरे को सिंगल लाइन में एक जवाब दे दीजिए कि 1200 स्क्वायर फीट का अगर कोई फ्लैट लेने जाते हैं तो मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने चार्जेस पे करने होंगे सुपरटेक को एट द टाइम ऑफ पोजीशन? Which is hidden. वो तो जो हिडन है, जो एग्रीमेंट में नहीं है। जो भी चार्जेस आपसे ले रहे होंगे उसके लिए बाकायदा ब्लैक एंड व्हाइट में आपके पास जा रहा होगा, उसका दिखाया होगा कि ये रेट में ये पैसा। कोई ऐसा चीज नहीं कि आपको पकड़ लिया, आपसे कहा कि इतने पैसे दे के जाओ, हर एक हेड को जाऊंगा, हर एक सरप्राइज नहीं होता है, सरप्राइज नहीं होता। लेबर वेलफेयर एडवांस मेंटेनेंस चार्ज का पर्पस ये है, जैसे सबसे पहले बीच में से एक क्वेरी आ रही थी कि मैंने अपना ले लिया पोजीशन और एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स हैं और 10 अपार्टमेंट खाली पड़े हैं, लोग नहीं आ रहे हैं या मान लीजिए ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप चले जाएंगे वहाँ पे और मेंटेनेंस शुरू हो जाएगा। मेंटेनेंस में ज्यादातर खर्चे कॉमन नेचर के होते हैं कि कोई रहे या ना रहे वो पैसे जाएंगे फिक्स कॉस्ट, सिक्योरिटी के टर्म्स में, फैसिलिटी मैनेजमेंट के टर्म्स में, मेंटेनेंस ऑफ कॉमन फैसिलिटीज के टर्म्स में, कॉमन लाइटिंग के टर्म्स में। तो उसको इंश्योर करने के लिए कि अगर मान लीजिए आज आप लोग घुसना शुरू कर रहे हैं, और ये बायर की बेहतरी के लिए होता है कि 24 महीनों का एडवांस पेमेंट एक बार आ गया, जो भी फैसिलिटी मैनेजमेंट या एस्टेट कंपनी वहां पे उसको रन कर रही है सिस्टम को, उसके पास वो पैसा चला जाता है, ताकि 2 साल के अंदर, मतलब वर्स्ट केस में भी 2 साल के अंदर जितने भी लोग हैं या तो ऑक्यूपाई कर लेंगे या रेंट आउट कर देंगे, तो फिर एक स्मूथ फ्लो बन जाता है। इस वजह से 2 साल का एडवांस ले जाता है। एक साल है तो बहुत। IFMS क्या है? वो तो IFMS हो गया ना। IFMS इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी एक कॉर्पस क्रिएट होता है। मतलब आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए, कोई भी डेवलपर ने जब डेवलप कर दिया और हैंडओवर कर दिया बायर को, तो RWA पर आ जाती है और RWA सिस्टम को रन करती है। RWA के पास कोई पैसा अपना नहीं है। जो इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी आपने अलॉटमेंट के साथ अलग अलग स्टेजेस पे जो भी उनके इंस्टॉलमेंट्स हैं आपने दिए होंगे, वो पूरा कॉर्पस ऐसा उठा करके RWA का हाथ में चला जाता है, और उस कॉर्पस से एनुअल इंटरेस्ट जितना बनता है, उस एनुअल इंटरेस्ट से आप लोग फिर आगे, क्योंकि डेवलपर ने जब सब कुछ हैंडओवर कर दिया है,
तो उसके बाद जो उसके मेंटेनेंस है, आपका व्हाइट वॉश है, जनरेटर का रिप्लेसमेंट होगा, एलिवेटर का रिप्लेसमेंट होगा, वो सब चीजें आप उस कॉर्पस के इंटरेस्ट से करते रहते हैं, ताकि आपके ऊपर एडिशनल लायबिलिटी ना आए कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट्स को रिपेयर करने में या रिप्लेस करने में। मतलब तो ये हम लोग ऐसे नोट कर सकते हैं, आपका पॉइंट आप नोट कर रही हैं कि आप ये हैंडओवर कर देंगे सारा मनी आरडब्ल्यू वो होता ही जाता है बायलॉज है सर, बायलॉज मैंडेटरी हां अलॉन्ग विद आईएफएमएस। हां सर एडवांस जो आप मेंटेनेंस ले रहे हैं, आपका भी गाड़ी डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट लायबिलिटी 1 साल का, 1 साल का है, तो उस दौरान तो सर मेंटेनेंस आपको करनी है बिना पैसे के। नहीं वो आपका नहीं, आप कंफ्यूज मत होइए। मेंटेनेंस किस चीज की? अगर मान लीजिए वॉल में क्रैक आ है, वो उसके लिए आपका मेंटेनेंस नहीं जा रहा है, आपका मेंटेनेंस जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, आपके जो फैसिलिटी मैनेजमेंट वाले हो गए, कूड़ा वाला हो गया, आपको पूल मेंटेनेंस करना है, जो भी करना है इस तरह के कॉमन खर्चों के लिए। क्या सुपर इसका हिसाब रेजिडेंट को देगा, पब्लिश करेगा? इट इज ऑडिटेड डॉक्यूमेंट, एवरी मंथ ऑडिटिंग होकर के नोटिस बोर्ड के ऊपर वो पूरा डिस्प्ले होता है, ये पैसे आए और ये खर्चे हुए। वो तो तब होता है कि जब हम आगे रहना स्टार्ट करते हैं, आप एडवांस ले आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया, आपने पोजीशन ले लिया, आप नहीं रह रहे हैं, तो फिर वहाँ पे सिस्टम नहीं चल पाएगा। किसका मेंटेनेंस, जब आपने मेंटेनेंस चार्जेस लेबर वेलफेयर चार्जेस क्या है? लेबर वेलफेयर को इससे मत आप रिलेट करो, लेबर वेलफेयर चार्ज एक गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, जितना लेबर रिलेटेड खर्चे होते हैं, लेबर के वेलफेयर रिलेटेड, वो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, लेबर से अगर गवर्नमेंट ने किया था तो आपने इसको अलॉटमेंट लेटर अगर आप पढ़िए उसमें लिखा है एंड एनी अदर एडिशनल आपने उसमें लिखा है तो जो एग्रीमेंट है आपका लेटर में लिखा है एनी गवर्नमेंट लेवी आफ्टर दिस। तो हमने जैसे 2010 में आपको एग्रीमेंट किया, क्या लेबर वेलफेयर उसमें लिखा अगर नहीं है तो हम यही कर रहे हैं, अगर उसके पहले भी आपने कर लिया था, आपने क्या था एनी अदर एक्स्ट्रा चार्जेस, आप एक तीन या चार शब्दों के कॉम्बिनेशन को पढ़ो, लेकिन अलॉटमेंट लेटर के पूरे पैरा को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो उसमें प्रॉपर्ली क्या है। आप वो 3 या 4 शब्द पढ़ें जो आप अभी बताना चाह रहे हैं। सर जो एडिशनल चार्जेस कह रहे हो, ये जो लॉ है लेबर लॉ 1996 में पास हुआ, ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है 2010 से शुरू हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ये कोई एडिशनली गवर्नमेंट ने नया नहीं लगाया है। जैसे आपने सर्विस टैक्स का कहा, सर्विस टैक्स जब गवर्नमेंट ने लगाया एडिशनली तो वो एडिशनली ऐड हुआ है, उसके लिए किसी भी बायर ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो लॉ ऑलरेडी 1996 से अप्लाई है तो वो आप एट द मूवमेंट लास्ट मूवमेंट पे वो क्यों ऐड कर रहे हैं, ये कोई एडिशनल नहीं है। आप उसको गलत लिंक कर रहे हो, आप बताइए। लेबर वेलफेयर सेस के साथ सीधे लिंक कर रहे हो, ये वो चीज नहीं है। अच्छा, लेबर वेलफेयर चार्ज आप जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराते हो तो बहुत सारी एक्टिविटीज आपको करनी पड़ती हैं लेबर से रिलेटेड, कि लेबर के बच्चों के लिए स्कूल भी चल रहा है, उनके लिए सबके लिए क्यों नहीं? वो सीएसआर है, वो सीएसआर है, सीएसआर है, वो सीएसआर पे जाता है, टैक्स नहीं है ना, ये उसके लिए तो उसमें क्या उसके लिए, तो उसमें कस्टमर सेकंड क्वेश्चन क्या कस्टमर्स सेकंड क्वेश्चन because we are not hiring labor लेबर का तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, it is cost of the project, cost of the project has to be taken from the buyer. गवर्नमेंट चार्जेस है, it should be documented somewhere. No, it's see, don't mix it with labor sales. Don't mix it with labor sales. It is not labor sales. All charges are हाँ, बाकी और चार्जेस नहीं है, बस पेड बाय द सुपर डे, नॉट चार्जेस नहीं है। any charge which is loaded on the project has to be charged on the project. उसकी सैलरी आप बोल दोगे 15,000 रुपए सर बायस को डिवाइड करो, दिस इज रॉन्ग। वो देखिए ये बताइए लेबर चार्ज आप लोग देने के लिए तैयार हैं? नहीं लेबर चार्ज देने के लिए तैयार और नौ की बात नहीं है, मैं रिहाइश की बात लेबर चार्ज है, किसी फेवर में ऑल बायर्स है या नहीं? सॉरी, ये लेबर चार्ज अप्लीकेबल टू ऑल बायर्स है? नहीं है, यही मैं आपको बताइए, नहीं है सर, नहीं है, कुछ लोगों को नहीं लगा है सर, नहीं है सर, आधे लेटर में है, आधे लेटर में नहीं है, आधे लेटर में है, आधे सर नहीं है।
तो ये क्यों डिफरेंस है? ये डिफरेंस क्यों है? अगर लेबर चार्ज है, सुपरटेक लगा रहा है, सबों पे लगा रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? क्रॉस प्रोजेक्ट है क्या? बाकी के प्रोजेक्ट में भी आपने चार्ज किए हैं? गुनीत ने अभी एक चीज बताई कि जो पुराने वाले हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी अभी इन्होंने बताया कि जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो पुराने वाले केसेस हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पुराने वाले तो आप ऐसे कह रहे हो जैसे वो 10 साल पुराने आपने पॉइंट उठाया ना उन्हीं टाइम का मैं जवाब उन्हीं टाइम अरे 10 दिन पहले या 5 घंटे पहले आप ही की बात मैनेजमेंट में फैसला ले ले, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपका मैनेजमेंट कहते कि भैया ये एडिशनल चार्जेस और लगा दो, तो उसके लिए क्या जो बाकी और की जो नेक्स्ट टाइम नहीं क्या वो पे करेंगे क्या उसको? अब आप बात मेरी सुनेंगे? सुनिए एक बार सुनिए। आपने खुद रेज किया है पॉइंट कि आपसे पहले जिनको दिया गया उसमें नहीं था, आप वाले में है, ठीक है। गुनीत ने बताया कि आपसे पहले वाले जिनको दिया गया था उसमें इलेक्ट्रिसिटी सुनिए कनेक्शन का उसके बाद डिसकंटिन्यू किया गया है। तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कंपैरिजन वैसे कर लेते हैं। देखिए ये कंपैरिजन वाली बात नहीं है। आप सीधा यदि एज पर गवर्नमेंट आपके पास कोई लेटर है कि ये चार्जेस बाहर से दिए जाने चाहिए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट से और लेबर से कोई लेना देना नहीं है। उनके एकोमोडेशन, उनके बच्चों की एजुकेशन, एडिशनल चार्जेस आपके पास कोई चॉइस एडिशनल चार्ज कवर हो रहा है like that, you know, any लेबर चार्ज नहीं करेंगे। अभी क्या वाले को डिसीजन ले उसके बाद अभी आएगा नहीं। घूमने गए थे उसके एडिशनल चार्जेस हम सिंगापुर घूमने गए उसके एडिशनल चार्जेस अनदर थिंग इसके लिए बोनस बांट दीजिए, तो बोनस बांटने के बाद उसका चार्जेस बाहर से लगा दीजिए, एडिशनल चार्जेस वो नहीं ऐसा नहीं होगा। प्रोजेक्ट रिलेटेड बात होगी। Supertech is not an NGO which will place such money. You are making money, you should take care of all these things. Correct. मैं भी काम करता हूँ किसी कंपनी में, राइट? मेरा जो एम्प्लॉयर है अपने क्लाइंट से मेरे लिए बेनिफिट दे रहा है, इंश्योरेंस के या बेनिफिट मेरे को सैलरी दे रहा है, वो दे रहा है, वो सब कुछ प्रोजेक्ट करके करता है, एस्टिमेट करके करता है। मेरे को एम्प्लॉय को इतना सैलरी देना है, इतना इंश्योरेंस कवर करना है, और मैं क्लाइंट से उस तरह से चार्ज करूंगा। They make that pricing for their customers that this is the price that you will have to pay for the service which I am giving. And the same you must have done that. Now why suddenly these charges have been reported to the buyer? ऐसा तो कर नहीं रहा। वो भी किसी पाँच साल पहले लेटर में बहुत क्लियर लिखा गया है। एक बार फिर आप जाके पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, एक बार फिर जाकर पढ़ लीजिएगा। एडिशनल चार्ज रखा है नहीं। बिना जस्टिफिकेशन की कोई चीज नहीं अगर गवर्नमेंट के चार्जेस है तो जस्टिफिकेशन लाके दिखाइए आप। मैंने आपको अभी क्या बोला है कि लेबर वेलफेयर पूरा डिफाइन किया कि व्हाट इज लेबर वेलफेयर चार्ज। जब
लेबर भाग रहा है, इनको काम ठीक टाइम पे नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट को भी अभी मैं आपको क्लियर जो चीज 4 बार कर चुका हूँ, फिर आप वही नहीं है ना, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिखा हुआ इनके पास। See, it is cost of the project has to be recovered from the buyer. I don't know whether you have run through the number that when you book the property, what was the value and what is the value. So that property is going to you, not to the developer. We are not investors. Are you giving the property? नहीं हुआ सर, 5 सालों में पहली प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन में जा रही है। कोई खरीदने को तैयार नहीं है यार वहाँ पे। सुपरटेक के नाम पे भाग मेरे को इन्वेस्टिंग करना होगा तो मैं आपको शेयर खरीद लेता ना यार। आपका जो लॉस हो रहा है, जो कॉस्ट ऊपर नीचे जा रही है, वेलफेयर दे रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है प्रोजेक्ट की, तो मैं एज अ शेयर होल्डर उसको बेयर करूंगा। ये शेयर होल्डर नहीं है। Project cost has to be recovered from the buyer. यूट्यूब पे डालो। जब आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हमको अपॉइंटमेंट बहुत सारे चार्जेस हैं जो आप कोटेशन के समय ही लिए रहे हैं। आज की तारीख में भी जब आपको ये चीज मालूम है, आपको ये चीज मालूम है कि ये चीज आप बाद में लेंगे, तो या तो आप इंक्लूड करते हैं, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आपके पास कोई एक्स्ट्रा यदि बाद में गवर्नमेंट आपके लिए 10 पैसे का होगा, लेकिन हमारे लिए वो वैल्यू है उसका। ये तो ऐसे लगा तो कोई और ये कर दे। आप एस्टिमेट करते हैं ना, आप डिवीजन देते हैं, चाहिए कि फर्दर जो लोग का ना डिमांड लेटर आएगा उसमें और कोई अदर चार्जेस नहीं लगाएंगे, जैसे कि आज कुछ और लगा देंगे। जब कोई डिफाइन नहीं देंगे तो कल कोई और करेक्ट एग्जैक्टली And if I don't pay, करेक्ट बहुत सही। how can you force? आप कह रहे हो आपकी प्रॉपर्टी प्रॉफिट में है, मेरी प्रॉपर्टी लॉस में, जितना मैं 95% पेमेंट पे है, प्रॉपर्टी लॉस में है। डिबेट में लेना होगी प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, क्योंकि जब लिया तो क्या प्राइस था आज का कोई प्राइस नहीं है, वो प्लीज raise this issue to your top level management. We guys are not ready to pay this level charges. No other will like. Otherwise, we will go to the court for this. If you go in the court, then how you will prove that you will have to pay back? Don't worry, that will show. That will show. यहाँ जो है वो आपका एटीट्यूड मुझे जो है वो लग रहा है कि आप ये माइंड बना के आए कि आपने हमारी सुनना ही नहीं है, करना कर लो, जो आपको करना है कर लो। आप यहाँ आपकी बात मैंने आपको इनके साथ हमारी मीटिंग हुई है, हमेशा हम सेटिस्फाइड होके गए हैं, आज तक का रिकॉर्ड है। ये फर्स्ट मीटिंग है जिसको दिया फाइल जो भी लॉलीपॉप ही पकड़ाया, लेकिन हम सेटिस्फाइड हो गए पहले ही दिन में शुरू ही आपने ऐसी की कि भैया लेबर डिले उसके बाद आपने लेबर को करेंगे डिले कर रहा है, दूसरे तो एक तो हम डिले कर रहा हूँ पूरा प्रोजेक्ट और हर चीज का चार्ज हमसे मांग रहे हो और आप कुछ देना नहीं चाहते। What will be the next section? See, based on the interaction with you, I already suggested that I'll discuss email ID.
सर 24 को नहीं, 24, 25, 26 नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लंबा वीकेंड है, उसमें सब लोग नहीं होंगे, तो अर्ली और नेक्स्ट वीक हर एक आदमी का एक शेड्यूल होता है और सब उसी के हिसाब से प्लान करते हैं। वही बात है, उसके बाद क्या होता है कि प्रोग्राम में किसी का कुछ है तो वो मुश्किल होता है कि आप ट्रेवल कैंसिल कर रहे एक आइडिया रहता है ना कि नेक्स्ट 2 वीक अगर आपको 24 से पहले मतलब 24 के बाद आप कह रहे हो वो कोई दिक्कत नहीं, 24 से पहले कह रहे हैं, 24 से पहले मुश्किल, 24 को 25 को जो भी करना 24 को वो मैं कह रहा हूँ 24 जिस तरह एटलीस्ट अकाउंटेबल तो रहेगा, सिग्नेचर करेगा तो मेल मार्क करेंगे ना, हमको मेल पे जवाब देना ही पड़ेगा। 5 प्रोजेक्ट कैसे खोल अभी आपने कहा लेबर नहीं है तो उनका वेलफेयर लेबर के लिए खड़ा हुआ है ना, वो तो 95% लेना तो खड़ा हो गया, 95% लेना